It's business as usual for the men in black, winning all the games they played regardless of how the opposition attacks. KP is a fierce unit, a wolf-pack 11 that sneaks out by the rarest of margins. Sindh could not keep up the trend of defending totals when they succumbed to Shan Masood's unbeaten knock of 53, letting Balochistan go beyond the target. Saud Shakil will be yearning to return to winning ways. A habit taking off from Khalid Usman would be an uphill battle. A challenge awaits. Very well, warm welcome back to the Rawalpindi Cricket Stadium. Kingdom Valley National T20 Cup 22-23, the latest game coming for you between Khyber Pakhtunkhwa and Sindh. Second game of the day on the same pitch. It had plenty of pace and bounce towards the second half of that innings. The ball was carrying through very nicely with a little bit of sun as well. It's going to dry up and it should be an absolute belter of a track for this game number 10 of the National T20 Cup. Let's go downstairs for the toss. Ali Yunus is down there. Red Bull gives you wings. No sudu, no surnai, no disturbance, absolute peace, love, joy, bliss. Two very strong sides are up against each other for the 10th game of. पिछला मैच काफ़ी क्लोज गए थे आप तो क्या सीखा है पिछले मैच से? पिछला मैच काफ़ी क्लोज था वहाँ हम 10-15 रन शॉर्ट थे अगर हम वो 10-15 रन पूरे होते तो हम इंशाल्लाह मैच आसानी से जीत लेते। क्या टारगेट सेट करेंगे? डिसाइड नहीं किया 1-2 ओवर देख के फिर डिसाइड करेंगे। टीम न्यूज़? सेम टीम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। खालिद उस्मान बॉलिंग फर्स्ट, सरप्राइज है? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। पॉजिटिव तो केपी के साथ जाता ही है, तो क्योंकि बहुत दफ़ा हमने देखा है कि मुश्किल हालात से भी आप बहुत आसानी से मैच जीत जाते हैं, क्या ख़ास वजह है? कोई ख़ास वजह नहीं है, बस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और उसी में कामयाबी मिलती है हमें। और आप क्या देख रहे हैं, कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिंध को? कोशिश करेंगे 150 से अंडर इनको कर ले, कंट्रोल कर ले। और टीम न्यूज़ आपकी? सेम टीम खेल रही है लास्ट मैच वाली। राइट, ऑल द बेस्ट खालिद। थैंक यू। Right, the news we have from here is that Sindh has won the toss and decided to bat first. That's the two sides here, and both are playing without any change. The same sides which represented their teams in the last encounter that they faced respectively. Winning the toss and winning the match seems to be a 99% opportunity. Out of the 9 games, 8 have been won by sides batting first. It could all change. The law of averages. Sindh have elected to bat. Formidable opening pair of Sindh. Taim Ayub, who's been in very good form. He's the leading run scorer so far in the competition. Just 20 years of age. His career is started to blossom now. 137 runs, 23 the average. 130 is a very impressive strike rate at the beginning of the career. And this man, needs no introduction. Belligerent, fearsome opening batsman, has been for quite some time. And that strike rate of 139 sends shivers down the spine of many new ball bowlers. Imran Khan Sr. always takes the new ball for KP. He'll be doing the same today. 79th game for him. Best of 4 for 20.
And he's bowling to Sharjeel Khan. And if you want to get Sharjeel Khan out, you get him early. If he stays for more than 3 overs, then he'll hurt you. Try to keep it within the stumps, and if you got the pace, then full ball, Yorker length, something like that. Width is a bit of a problem for the bowler because he'll go hard at you. First ball, match 10. Yeah, width is a problem. They've got protection, but it's easy pickings for him. And that bounce is true as well. Margin of error for the bowlers on that length is very minimal, although he's got protection, but Sharjeel Khan will put you away if you keep giving him those opportunities either side of the wicket. Saim Ayub is also in good touch, like I said. Imran Khan is a seam bowler. His general lengths are just slightly back of a length. And like I said, because of the true bounce on this pitch, if its lines are not good, he can travel. That's the first extra. Saim Ayub is the man on strike, scored 92 in the previous outing. Led the way, especially after an early departure of Sharjeel. So important that an opener or a top order takes you all the way, scores big. That sets the momentum. Any planning that you've had in terms of getting to a certain score, batting first, helps you a lot. Average first inning score in this tournament up till now in 9 games is 162. Because we've gone up to 190s and we've gone as low as 140s batting first. Nice crunch of the bat from Saim Ayub. He's been finding the middle of the bat in this tournament quite often. This was the best possible cover drive that you can see. His power game has also improved. A little bit of luck along the way. But that range of strokes, look at that, against pace and spin, front foot and back foot. He was really in dominant touch that day. Quite a high percentage of his scores are in boundaries, 60%. That's the advantage of batting inside the power play. You go back in match 9 when Central Punjab came out to chase 147 to win in 16 overs. Just the fact that you don't get a good start. They were a bit choked up in the power play as a batting unit, and that helped the fielding side keep that pressure on. So important. Your role as a new ball batter is to go and attack, strike hard. These teams have now had a good, fair opportunity of looking at how the surfaces are across the square. The 10th match. The work is cut out. Good looking shot. That's a beautiful looking shot. That's effortless. There's nothing fussy about it. There's no extreme raw power in that shot. It's just timing. And to get that sort of timing of a slower delivery, really raced across because it found the sweet spot of the bat right in the middle of the gap as well. Cracking start for Saim Ayub. Look at his shape and poise on the crease. The balance was absolutely perfect. Saim Ayub would probably depend on the surface a little bit. But someone like Sharjeel, his brute force doesn't really rely much on that surface. He can pick the ball up from any length and hit it hard. Even a miss hit travels. So if it's in his radar, if it's in his swing zone, he'll go for it. Just look at that cover drive, that front stride, the high front elbow, and the toe pointing to where exactly that ball went. As good as it gets. Saim Ayub. You're talking about Sharjeel. Sikandar was just a minute ago. I think this wicket is perfectly suited to his style of the game. You can hit through the line. Genuine bounce there as well.
Good finish to the over from Imran Khan Senior. And off and running. 7 for none. Arshad Iqbal is the new bowler. Very promising talent. Tall and getting stronger. Every season you turn around and have a look at him. His shoulders are quite strong and broad now. Uses good use of his height. Good contest here. I think Saim has found the middle of the bat quite early. And this is going to be mouth-watering contest to watch. An absolute crackerjack from Arshad Iqbal. Angling away from the left-hander. And look at how that ball took off. Haris up above his waist, taking that ball. That's 4 more. Nothing you can do as a bowler, you just look at it. The width is a problem. You're allowing him to stretch his arms and get to the ball. Though it wasn't really far away from him. But the kind of form he's in, Saim Ayub will put you away. Just that angle took the ball slightly away from Saim, allowed him to free his arms. Not a real bad delivery, but this is the kind of form that Saim Ayub is in. He picked up the length. And like I said, this bounce is really good for this kind of stroke play off the back foot. Very rarely you see such kind of bounce on Pakistani pitches. So let's talk about what we've seen up till now in the Kingdom Valley National T20. So out of 9 games, 8 have been won by sides batting first. So what's your take on that? Why are teams struggling to chase it down when the first choice by captains at a toss is about chasing in this format? Chase and win. When you mention a stat like you did, the first thing would come to mind as if it was the conditions. But it's nothing to do with the conditions. That Umar Amin also mentioned that. I'll come back to it after this ball. Not entirely in control. Looking to go on the up. The bat turned in his hand a little bit, but good enough contact to take it over the infield. Coming back to that point about chasing, Umar Amin also mentioned the team has lacked in planning. How to plan a good run chase. They've fallen behind in run rate and then they couldn't cope up with that. Execution of the plans. And also strength and depth in the middle order has been lacking. Team seems to be top heavy. Well, that's protection there. Well, I'll tell you what I think, what I see. See, the scores 140s, 60s, 80s, 90s. The whole range has not been chased down. That's probably because chasing requires finishers. Middle orders are weak. None of the teams have had a finisher. Now Sindh has someone like Anwar Ali. Danish Aziz hasn't really been doing well. You talk about Hussain Talat has not been in good touch. Today there was a bit of a shuffle in the batting order from Central Punjab, but really you're missing that someone who can score you 13 and over for at least 3 overs right in the end. You got Amir Yamin, yes. Someone who is a batter.
We'll come back to that. 2 gone. It's 14 for none. More evidence of that bounce there, leaving the left-hander with the angle. Imran Khan's natural angle. Saim Ayub, lack of footwork on that occasion. Just hang the bat at that. Now, coming back to my point, so you're talking about the ability to finish a game off, and you need those finishes down the order. And a bit of help from someone who's looking to bat through the innings. We've seen people getting starts, top of the order, getting to their 30s and they get out. Though 30 is a big score in T20. It's almost counted as a 50 in ODIs. Again, a beautiful shot. Will race away. No point chasing those. Just a class act. I mean, he gets into his own. He's a treat to watch. Slightly fuller from Imran, and Saim got onto it in a flash. Glorious cover drive. There's something about the left-handers cover drive that they make him more pretty than the right-handers. Effortless ease. Look at that high front elbow. One for the gallery. You got a hammer and then you got a sledgehammer on the other side. The only game that was chased and won by Balochistan, that's the team, that involved, of course, that 53 from Shan Masood, but down the order at number 7, Ahmad Butt, 25 of 13. You need that. Shot again. Beautiful. Resti looking at the ball right under the chin. An absolute treat. They did shape back into Saim Ayub, but his balance was superb. A flick of the wrist and away it went. This boy has a gift of timing. Look at that, that still head. Just whipped it away. He's in supreme touch. Going back to, you make a very good point about the previous game. A top order batter carrying the innings through and then gets the aid of the big hitter to bring down the run rate. That's the combination that's generally been missing. In one of the games in central Punjab, Irfanullah Niazi played that big hitting knock, but he had to do all of it on his own at one stage. That's why they fell short by a couple of runs. So this is something the team management will have to look, and roles have to be designated to certain players in the middle order, 3 and 4 to finish the game and just be there till the end. This is how they score across 20 overs. Power play, you see how Sindh is ahead of them. But then KP picks up in between, say, around over number 7 and 15. Death overs again, KP takes the advantage. So they finish well. But the point I'm trying to make, those are scores batting first. Only one side has one chasing. And that's the important thing. You got the scoreboard pressure on you. Who are the players who could be your finishers? Hussain Talat, of course, Ahmad Butt. Ahmed Yami is there. Akhlaq, yes. Clark has been going up and down in the order. Then there are some who are not there, who are second 11. I'd still say Umar Akmal, someone like that. CP might need his services. Because you need someone who can hit the ball and hit the ball big. Or I can think of
Danish Aziz, who's playing that role at the moment, getting high on that bat. But they've got, I think, Anwar Ali is doing that role at the moment. We'll talk about it. 22 for no loss. Cooler and cloudy here at the Rawalpindi Cricket Stadium, Sunday afternoon. Bit of a crowd as well today. It's a huge day as well. Later in the day, Pakistan will be taking on India in the Asia Cup in the Super 4. Plenty of entertainment before that. The cracking pitch, and it's producing an absolute cracking game at the moment. It's taken pace off, it's gone high, but it'll go over the keeper and everyone else for 4. Well, like I said, a miss hit goes for a boundary. With him, it's just brute force. We didn't read the pace on it, but that really doesn't matter. There's no way in the wide world this ball could have gone that far. Clearly got surprised by the bounce from Imran Khan Jr. Just 1-2 bounces over the fence. He has all the tricks that you can think of. Imran Khan Jr., only 21 years of age. 17 wickets at 37. Economy is 8.5. Always bowls in the power play and in the death overs. Sharjeel normally belligerent on that kind of length. Bailey was taken by surprise, but I think Imran has to be careful. Glancing around over square leg. Sharjeel, this is his favorite area. The first one at the back of the hand, this one a little quicker. Sindh also depends on that good start. Saim is giving them that which they've been missing. But they need that crazy knock from Sharjeel to give them that extra edge of those 20-25 runs. Keep it within the stumps with him. You can ball it fuller into the stumps, then you miss, I hit comes in. But when you are bowling away from the stumps to someone like Sharjeel, you're eliminating a lot of things. He's not worried about getting bowled, not worried about getting leg before. Now he can just throw his bat at it. Now, third man is coming in, and they push the long on back, and he's quite wide, right in front of that team's dugout. Let's see what ball are we going to see. A good start up till now from Mohammad Imran Jr. Ball is hitting the bat quite hard. Generally, Imran is known for his variations, but I think he's worked off season on some of his pace. Looking fitter. That ball is going through nicely, and the bounce as well. Bounce makes it so much more interesting. This Pindi pitch is really at his very best today. Risty. Protection around. Sharjeel Khan looks like he hasn't woken up just yet. Who would have thought Saim Ayub would outscore Sharjeel? See that short delivery where he's surprised. Hardly ever seen Sharjeel get surprised by the bounce. Risty flick. Also, you look like he didn't pick it early enough.
That's an excellent over in a power play. 5 of it, 27 for no loss. For Khalid Usman, or is it Adil Amin? Inside the power play, KP is not afraid to change their plans and surprise their opponents. They don't stick to a rigid plan. And this is indeed a surprising move. Adil Amin inside the power play. Straight up and very, very straight. That's 6. He just played it through the line. This one didn't have much power to it, but it's just the elevation and a bit of force behind the shot. What a shot. Little loosener and Shergill in the arc for him. Too full. Got close enough. And just a little punch. These are not short boundaries. 72 yards. Cleared it with ease. Wow, he's gone with the angle. That didn't turn at all. It's so many times we've seen Shergill do that. The ball just passes between the bat and that gate. Well, just didn't know where to get that bat. It starts coming down horizontally. Slightly slower and higher. Went with the arm through the gate. Shergill, after hitting that 6, bit of a lazy stroke, you have to say that. He was about to get warm, but now it's time to take that long walk back. 12 of 10 for the big man. 10, 33 for 1. Keeper Saud Shakil in early. Will have plenty of time at his disposal to build a good innings. Average of 17, just a 150 in this format. Strike rate of 122 in the middle order is not that bad. Still, his doubters in this format has to come up with the goods to silence them. It's all the ability in the world, this young man. It's amazing the amount of timing you can get, and you can get a boundary in this format. Pure timing from Saud Shakil. Use of the wrist. Catch it is the call. One bounce to Amir Azmat. Sweep is one of the favorite shots of Saud Shakil. He's gotten off to a good start. Boundary in a single.
The changes worked. Adil Amin may not get another over because his job was to get Sharjeel away. I'm talking about in the power play. Might bowl at a later stage, but that trick has worked for Khalid Usman. That's the one. His bat coming sideways, trying to chop onto the ball. The size of the gap is pretty big. 39 for 1. इमरान जूनियर अपना दूसरा ओवर करेंगे पवेलियन एंड से, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंद एंगल के साथ स्टंप्स को छोड़ती हुई जा रही थी और रन हासिल कर लिया। शर्जील खान आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन इस पावर प्ले में ज्यादा स्ट्राइक करने की जिम्मेदारी साइम अयूब ने निभाई है। सिंध की बैटिंग का आसा रहा है इस सीजन में, हालांकि इनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं सऊद शकील या साद खान, ये कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन ये जितने भी रन्स बना रहे हैं ये वो असरदार रन्स बना रहे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और उसी का फायदा हुआ है इनकी टीम को अब तक। विकेट कीपर गलती कर बैठे, इसलिए रन ये हासिल कर लिया। भाई का मरीना मेरे हमरा मौजूद हैं, अब तक इस सूरत हाल से सिंध ज्यादा मुतमईन होगी। बिल्कुल, काफ़ी तहम्मुल है इनकी बैटिंग में। जितने भी बल्लेबाज हैं आके अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पीड अच्छा करते हैं। स्ट्राइक रोटेशन एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, जो भी ये टोटल पोस्ट करने जाते हैं या जितने भी प्लेयर्स देखे हैं बाएं हाथ ज़्यादा खेलने वाले हैं। साइम अयूब शानदार इनिंग्स खेली थी 52 रन की। सऊद शकील बहुत बड़ा कैपिटलाइज नहीं कर सके, लेकिन डेप्थ भी बहुत है इनमें और जो भी आ रहा है जिम्मेदारी ज़रूर ले रहा है। या फिर से बाउंसर आएगा साइम अयूब को इस ओवर में। स्टंप्स में गेंद करने की कोशिश की, रफ्तार भी आहिस्ता थी और एक और अच्छा सिंगल दायरे के फील्डर्स को। ये भी एक और खूबी है सिंध की इस बैटिंग लाइनअप की। ये देखिए बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी थी, और जो दायरे के फील्डर्स हैं इनको हमा वक्त ये इनको इनके पंजों पर रखते हैं जिस तरह की रनिंग करते हैं। और सिंध और दूसरी टीम्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है इनके बल्लेबाज का। अगर बाउंड्री नहीं मिलती तो ये स्ट्राइक रोटेट करते हैं। ये अच्छा शॉट खेला एक और रन के लिए सऊद शकील ने। सिंध ने पहले मैच में पावर प्ले में 49 रन बनाए, दूसरे में भी 49 रन बनाए और तीसरे में 48 स्कोर था। या आज ये उस रिकॉर्ड को बेहतर कर सकते हैं। अभी 2 गेंदें बाकी हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीमों की ख्वाहिश यही होती है कि पहले 50 रन बना लिए जाएं इन 6 ओवर्स में। इसके लिए 2 विकेटें ही क्यों ना गिर जाएं। और एलबीडब्ल्यू, जी हाँ, अपने दाम में लाए इमरान जूनियर। गेंद पड़ने के बाद अंदर को आई और अक्रॉस द लाइन हिट करने चले गए साइम अयूब। ये अनमोल विकेट है। बहुत बड़ा क्रॉस बैट शॉट खेल गए थे, अमूमी तौर पे इनको देखा नहीं जाता। ब्लॉक करना चाह रहे थे, अगला पांव क्रॉस था जिसकी वजह से कोई खास कनेक्शन नहीं हासिल कर पाए। और एक अच्छी विकेट मोहम्मद इमरान जूनियर की, 23 रन बना के वापस सिंध 39 पे 2।
सिंध ने हर मैच में 2 विकेटें गंवाई हैं पावर प्ले में। आज भी उनके दोनों ओपनर्स इस वक्त मैदान बदर हो चुके हैं। साद खान नए आने वाले खिलाड़ी हैं जो आप मिले हैं कप्तान सऊद से पिच पर। और ये भी पैड में लगी, लेकिन अंपायर ने अपील पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। साकिब खान का ख्याल था गेंद स्टंप्स को छोड़ती हुई निकल जाती। तो अच्छा ओवर मुकम्मल हुआ। ये देखिए बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी फेंकी जिस पर विकेट हासिल की। जल्दी शॉट खेल गए थे और अंपायर को सिर्फ ये फैसला करना था क्या ये लेग स्टंप के बाहर तो नहीं निकलती। ये आज एक नई चाल चली आदिल अमीन से। जल्दी जो बॉलिंग कराई गई पावर प्ले में वो कारगर रहा फैसला। उन विकेट ली शर्जील की और क्योंकि इस वक्त 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं पिच पर तो इसलिए यही चाल फिर से चली है कप्तान ने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ऑफ स्पिनर को इस्तेमाल करने की। अच्छी थिंकिंग है। खालिद उस्मान सेटल नहीं होना देना चाहते और ऑप्शंस बहुत है इनके पास। सिंध ने एक नई टीम खिलाने का फैसला किया इस टूर्नामेंट में। एहसान अली पूरी तरह फिट नहीं थे और कुछ खिलाड़ियों से उन्होंने मावरा होकर इस टीम को तश्कील दिया। ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों से। अच्छी आम बॉल बाल बाल बचे और उसका फायदा हो रहा है इनको फील्डिंग में भी, विकेटों के दरमियान रनिंग में भी। और एक नई सोच नजर आ रही है। कप्तानी का भी मौका सऊद शकील को मिला और अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। साथ सरफराज अहमद भी दे रहे हैं जो एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। अभी तक सिंध ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया नहीं। बैटिंग भी उनकी अच्छी, बॉलिंग में भी काफ़ी उनकी स्ट्रेंथ है जिसका जिक्र सऊद शकील ने टॉस पे भी किया। जी और ये इस एतबार से भी अच्छी पेशरफ्त थी कि जो नए हेड कोच हैं गुलाम अली वो क्योंकि सेकंड 11 में इनमें से बेशतर खिलाड़ियों की कोचिंग कर चुके थे। उन्हें कामयाबियां भी हासिल की थी सिंध के लिए। और ये अच्छा शॉट खेला, लेट कट किया इससे 4 रन के लिए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर नजर आई और इसका पूरा फायदा उठा लिया। 7वां ओवर और निस्फ सेंचुरी सिंध की मुकम्मल हुई 51 पर 2। ये पावर प्ले की बड़ी उम्दा इब्तिदा की। फ्रंट फुट बैक फुट पर चौके देखने में आए। बड़ी भरपूर फॉर्म में साइम अयूब नजर आ रहे थे विकेट की दोनों जानिब। उन्होंने दिलकश शॉट खेले। शर्जील ने पहले चौका लगाया और फिर बोल्ड हो गए आदिल अमीन के ओवर में। फिर एलबीडब्ल्यू आउट किया साइम अयूब को स्लोअर 1 पे। 6 चौके लगे पहले 6 ओवर्स में और 1 छक्का भी, लेकिन केपी ने फाइट बैक किया 2 विकेटें हासिल करके। यहाँ इस वक्त ये आफरीदी मोहम्मद सरवर आफरीदी बॉलिंग करने के लिए आएंगे। तो ये भी एक नया हरबा है जो खालिद उस्मान शायद सरप्राइज करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने भी पहले बॉलिंग नहीं की थी आदिल अमीन की तरह। अच्छा स्क्वायर ड्राइव, यहां पर दूसरा रन बन जाना चाहिए।
क्योंकि बैट्समैन इस वक्त दोनों एंड पर बॉलिंग कर रहे हैं और किसी टीम के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में इससे बड़ा असासा हो नहीं सकता कि उनके पास ऐसे बैट्समैन हों जो कि बॉलिंग कर सकें। और तारीख भी हमें यही बताती है। आप जितने वनडे वर्ल्ड कप्स टीमें जीतती हैं, आपको ये बात नज़र आती है कि हर बार उनके पास ऐसे बैट्समैन थे जो बॉलिंग करते हुए नज़र आए। इस तरह पहले वर्ल्ड कप में क्लाइव लाइट थे वेस्ट इंडीज़ के लिए, भारत के लिए मोहिंदर अमरनाथ थे 1983 के वर्ल्ड कप में, 1987 के वर्ल्ड कप में खुद एलन बॉर्डर बॉलिंग किया करते थे, 1992 के वर्ल्ड कप में एजाज अहमद थे। कप्तान के तौर पे आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है अगर आपके पास ऐसे यूटिलिटी प्लेयर मौजूद हैं बैट्समैन की शक्ल में जो आपको थोड़ी मदद दे सकते हैं बॉलिंग में भी। ये अच्छा शॉट था, अच्छा वेट ट्रांसफर किया और फील्डिंग उससे भी ज़्यादा उम्दा एपी की साइड की। ये एक शानदार चीज़ रही है कि फील्ड में जान मारते हैं और यकीनी चौका उन्होंने बचाया, खुद मौजूद। अच्छी डिलीवरी इस बार सीम पर टिपा पड़ने के बाद तेज से निकल गई आउटसाइड एज के बराबर से। ये हालांकि ये पहली नज़र में आपको इतने तेज बॉलर लगते नहीं है, लेकिन ये हैरान करने की अहलियत रखते हैं। जो दोनों बैटर हैं उनको पेस पसंद है, अच्छा टाइम करते हैं गेम। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा अपने आप को सेट करना मोहम्मद सरवर के खिलाफ। फरहान निसार ने, जो हमारे स्टैट्समैन हैं, उन्होंने बताया कि ये इनकी फेवरेट जो है हरीफ टीम भी है। ये रावलपिंडी में ही इनका T20 डेब्यू हुआ था सरवर अफरीदी का 2015 में और इन्होंने 4 विकेटें ली थी कराची के खिलाफ। ख्याल है खालिद उस्मान को आपने ये स्टैट मैच से पहले दे दिए थे शायद। फरहान निसार जो है काफ़ी खिलाड़ियों से इनकी मुलाकातें रहती हैं। सेवन साइड में नाचिया और दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन इसका मौका इमरान जूनियर ने दिया नहीं। अच्छा ओवर आप, इसमें सिर्फ 5 रन सरवर अफरीदी ने दिए, 56 पर 2। अभी इन फॉर्म सरफराज अहमद को आना है, दानिश अजीज, अनवर अलीम ये बैटिंग कर सकते हैं। अबरार अहमद को आज भी खिलाने का फैसला किया गया। यहाँ तो अभी ये जो लाइनअप नजर आई थी सिंध की, इनमें से अक्सर जो खिलाड़ी हैं, वो साद खान हूँ या फिर साइम अयूब हूँ, अबरार अहमद हूँ, ये गुलाम अली के साथ सेकंड 11 में खेले हैं पिछले 2 बरस से। तो अब ये तरक्की पाकर आए हैं, अब इनकी ग्रेड 1 की टीम में सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में। और यही बात हम नए कोच के बारे में भी कह सकते हैं और यही तरीका भी है कोच और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट का, क्योंकि वो इस ड्रेसिंग रूम में ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे। बिल्कुल, और ज़रूरी ये भी है कि स्टेप बाय स्टेप प्लेयर को लाया जाए। और अब आप देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेकंड 11 में परफॉर्मेंस दी है, उनको उन पर एतमाद जाहिर किया कोच ने, और यहाँ पे वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, स्टैंड आउट कर रहे हैं। कोच की जब बात करते हैं एक सरबराह की तरह होता है, एक जैसे फैमिली होती है, लेकिन अहमियत और नज़र जो है वो बहुत फ़र्क डालती है कि किस प्लेयर से किस तरह का काम निकलवाया जाए। ज़्यादा आगे गिरी, कट करने के लिए चले गए।
अच्छा क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए एंगल क्रिएट कर रहे हैं खालिद उस्मान। इस बार विकेट के ज्यादा करीब आ गए थे और दूसरा रन यहाँ पर भी ले जाएंगे। अच्छी दौड़ लगाई, बड़ी दानाई के साथ ये दोनों खिलाड़ी रन बना रहे हैं। 9 ओवर्स के बाद 60 पर 2, कोई खतरा मोल नहीं ले रहे सिंध के बैट्समैन। बहुत उम्दा रनिंग, बहुत हल्के हाथ से खेला था, जानते थे कि बहुत दूर से आना पड़ेगा डीप से फील्डर को, और एक अच्छी लाउड कॉल 2 रन की। ये बहुत खासियत रही है सिंध की बैटिंग की, ना सिर्फ बाउंड्रीज लेने जाते हैं बल्कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत अच्छी है। 60 पे 2 आउट सिंध। आज 2 बड़ी टीमें पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट की आमने सामने हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। इस नेशनल T20 कप में पिछले दोनों टूर्नामेंट्स की चैंपियन है खैबर पख्तूनख्वा। और हालांकि मोहम्मद रिजवान इस बार नहीं है, शाहीन आफरीदी, इफ्तिखार अहमद, वसीम जूनियर, फ़खर जमान की भी खिदमत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में भी ये वाहिद टीम है ये नाकाबिल शिकस्त है अभी तक इस चैंपियनशिप में। इनकी सबसे अच्छी जो बात है वो एक बहुत अच्छा जेल है इनका ड्रेसिंग रूम और टीम। जब भी आप इनकी बात करते हैं, चैंपियंस की तरह खेलते हैं, और कप्तान से या कोच से जब भी बात की गई है तो यही बताते हैं कि हर प्लेयर को जिम्मेदारी दी गई है, उसका किरदार वाज़े तौर पे बताया गया है कि टीम में क्या है, और ये एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। जैसे आज नज़र आया हमें, 2 बॉलर्स को इस्तेमाल किया। एक बार फिर दूसरा रन लेने के लिए कोशिश होंगे, लेकिन इसका मौका दिया नहीं मिड विकेट से आदिल अमीन ने। अच्छा मौसम है यहाँ जुड़वा शहरों में, रावलपिंडी में सुबह इससे बादल छाए हुए हैं और अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। आज की पिच खासी हार्ड है, गेंद बेहतर बल्ले पर आ रही है, थ्रू द लाइन आप शॉट्स खेल सकते हैं। पहला मैच हाई स्कोरिंग रहा 16 ओवर्स पर मुश्तमिल होने के बावजूद, और इसमें भी सिंध की टीम जो है अभी 100-110 रन बनाने की हालत में है। खराब फील्डिंग, इमरान जूनियर खास से नौजवान हैं, उनसे तवक्को की जाती है इससे कहीं बेहतर खेल की, और ये 4 रन का एक तोहफा उन्होंने दे दिया सिंध को। पहला तोहफा तो मोहम्मद सरवर ने दिया था, ऑफ पैड साथ, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है उनका, लेकिन ये गेंद रुकनी चाहिए थी, इतनी को खास तेज रफ्तार में भी नहीं आई थी, आराम से भी पकड़ सकते थे बगैर डाइव किए। खुश नहीं है बिल्कुल भी सरवर। तो हम कह सकते हैं कि रावलपिंडी का जो मौसम है वो इन क्रिकेटर्स पे भी मेहरबान है। आज क्योंकि सूरज सुबह से निकला नहीं, ठंडी हवा चल रही है, बहुत खासी तेज हवा चल रही है इस वक्त, और ये आप देख सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं आज ज़्यादा खुशी खुशी फील्ड में उतरे। फील्ड चेंज की जा रही है, लॉन्ग ऑफ भेज दिया है और स्क्वायर लेग को अब सर्कल में बुला लिया। आखिरी गेंद है, कोशिश यही होगी कि सिंगल दे के यहीं पे ओवर ख़त्म किया जाए। एक और अच्छा ओवर सरवर आफरीदी का, इस बार भी सिर्फ 7 रन उन्होंने दिए 10 के बाद 68 पे 2।
Yavaş. Catch. Good ball. Oh, that's a good shot. Really good shot by Saad. This boy is really talented. He's definitely one for the future, this young lad, Saad. Yeah, weighted nicely. And that footwork, excellent. It's one of your favorite teams in the tournament, isn't it? And rightly so, because they've got a good fair balance, not because they've won good games or maximum games. But still, I'm waiting for that true potential to come out, especially with the finishers. Likes of Danish Aziz. Anwar Ali can do a bit more. Right now for them, apart from Saim Ayoub's 91 odd in the previous game, Sarfaraz batting through the innings twice. I'm talking about only batting at the moment. I'm not going to the bowlers. They still need that X factor somewhere. There's a catch it shot, but won't reach to any one of them. In fact, just right between them for 4. Skipper, letting loose now. They face 10 overs. This is good batting. This is good partnership. 34 of 29. Have a look at that. Always handy if you know how to play a good sweep shot. Somebody like Khalid Usman, and he placed it beautifully right between the two fielders to get the best result out of it. I just love this new look of Sindh side, even though the responsibility to Saud Shakil. And he's doing it very well. He's doing a very good job, Saud Shakil. They're not scared to give opportunities to somebody like Saad Khan, promoted and up the order. Given the opportunity to Saim Ayoub. I would just like to see Zishan Zamir get a game now. Only 11 can play. Good pick up and throw. Good pick up and throw. Amir Azmat there. 11 gone. 79 for 2. It's a good mix. If you look at that, 10 fours, 1 6, 3 2s, 24 ones. Good mix. 11 now 79 for 2. And the X factor we were talking about the Sindh side. I think if Zishan Zamir, I think in my opinion, has that X factor. If they can give him the opportunity here or there, over here, especially in Pindi pitches, he'll definitely be handy. Just love the crowd here. It's Sunday, it's holiday. They've come in number, although they're scattered towards our right, but they're loud. And why not? They have come in numbers. There are superstars playing from both sides. KP, the defending champions, taking on one of the best sides, Sindh. And the weather is just marvelous. Good shot. Good shot. 4 more. Solid. Very solid. That is why I rate this youngster really high, Saad Khan. Have a look at that. Just flat batted it through the covers. How many times do we see this shot? Amazing. He's an amazing talent, I tell you. Making the most of this opportunity provided to him by the management, batting up the order at number 4 before Sarfaraz, Danish Aziz. Got to make it up. This is exactly what he's doing.
Good run. And it's all about the calling. At the moment, on the back foot, KP is trying to make sure that they can get control of this run flow. Previous over, 2 boundaries, then singles. Yeah, he's exposed his leg stump. He's lucky he's not missed it completely. It's in the air. It's in the air. He knows he's out. He knows he's out. The minute he hit that shot, he knew it. He hasn't completed the stroke. Started looking down already. KP get the man. Server is the wicket taker. That breaks the momentum. Captain goes. Yeah, picked it all right, but the force not quite there. Probably hit a little high on the bat too. And an easy catch to Server. He just can't dominate them. This KB side has something about them. They're so resilient. They always keep coming at you. Captain scored 20. It's 84 for 3. They're loving it. Why not? Because now they're seeing Sarfraz Ahmed come in after the wicket of the captain Saud Shakil. Very fit looking Sarfraz. Got a job to do. Has to make sure that team get to that desired total they were thinking about, 170 maybe. They'll be happy with the 160 because this is a very good pitch to ball on. They've got some quality bowlers in their lineup, quality spinners, quality fast bowlers. They've got to give them enough runs. Previous match we witnessed Central Punjab losing the game to Northern. They could not chase down that score. But this is KP side. They are different. Good numbers, 3,873 runs to him. 127 the strike rate. It's calling for 2. He got a rush. And no, his partner doesn't want it. Yeah, very hard to say no to Sarfaraz. You better be very sure about that run wasn't there as the wicket. Look at Saud's reaction when he hit that. We'll show it to you from another angle. The minute he hit that, he knew it, that he's messed it up. That's much later. Good run again. Soft hands by Saad. Yeah, have a look at that. He hit it at the bottom of the bat. Yeah, and he knew it. Certainly, yeah, the disappointment was right there. The head falling down. He knew it, he hasn't timed it. Wants to. Saad will need a couple of bottles of water now. And he's going to really make him run 87 for 3. He'll always search for runs. If you're running with him, you've got to be very vigilant, very quick. Because he'll keep asking for those runs. 12-1, 87 for 3. I'm bowling over. Bowling game right arm.
Arshad Iqbal, 7 runs in his first over. KP looking for this, a wicket here. Sarfaraz just come in. If they can get him out here, they'll be in a good position. It's not an easy chase ground. So what would Sindh be looking from here, Sikandar? How many score? How much total would they be satisfied with? You've seen the first game. They won the toss, batting first. They should be happy. That's 95% of the game in your pocket. But I'm gonna keep, of course, the opposition in mind. If you're playing KP, what kind of score? I think anything between 160 and 165 is good. Because Sindh has got good bowling attack. They've got Abrar, they've got Rahil Khan, Zahid Mahmood, Mir Hamza. Fight with that. Well, more the merrier. Yeah. This is a good batting pitch. Well, from what we've seen up till now, the power play bowling, if it's good, I'm talking about when you're chasing, then the game is half earned. It's in your grip. And in this format, what happens is that only an over or two of negligence can cost you the game. The Central Punjab had everything in control. Last 2 overs, they gave around 14 and 16. And that had them chasing 147. And then on top of that, they just couldn't cash out much on the power play, which was a shortened power play because it was 16 overs a side game. Yeah, but the only problem here for Sindh is their opponents, KP. Every time you think you're dominating them, they'll come out with a way of winning the games. They know how to win. They're never out of the game. If you think you're dominating them, they'll come back. That will be a wide. Waste of energy by Arshad Iqbal. Seems like he's had a good box of jalebis. Coming back for second. That's the kind of running you need. That's the kind of running Sarfaraz would push for. Good running. This is what Sarfaraz is known for. He'll always push you. So talking about jalebi, I have something for you, the Garato jalebi. Very famous, Rawalpindi. That's like jaleba, not yeah, jalebi. That's for you. It's the size of it. In the air, high on the bat. No one's going to be getting there because it's just a vacant zone. In front of the square, everyone's deep. That jaleba that you just showed me, you have that and you won't have energy to run like these two are running between the wickets. It'll probably put you to sleep. But it's very tasty, I tell you, very delicious. Let's get the Comcam. Let's see you enjoying it. Anytime, anytime. Okay, short one. Let's see Ali finish this off. This one, it's pretty heavy. It's pretty heavy, I tell you. Yeah, I know. That's why I'm asking you to do it. Yeah. Finish it off before the end of the over. That's one ball to go. No, no. Thank you. I've never seen jalebi that big. But you said, what is it called? Well, Garato jalebi. Garato. It's very famous in Lahore too.
This reminds me... No, okay, let it be. Oh, that had a bit of an extra bounce there. I know Ali can't comment on that because he's busy having that grotto. End of the over. And it's 13 gone, 96 for 3. Everyone's busy taking selfies. Such a nice weather here. Nice weather to be out here in the stadium. Very good. Family day. It's Sunday here. Holiday. We've come in numbers. Lovely weather. Good cricket. Wind blowing. Excellent day. The planning and the gameplay is the same. Is just the kits that and the colors that change. So now here Sarfaraz will play Ali Imran's role. Bat through the 20 overs. That's what he's going to do. If he survives till the 15, 16, then he can go for the shots. And as we discussed earlier, you don't need to be a power hitter to get runs against your name at a strike rate of 120 plus. You can place the ball well. You can get those boundaries like Saimayu, but that was a circle limit, yes. Each and everyone has a role defined. So if you want Anwar Ali to come and express himself, give him the last 5 overs with a good foundation. If you bring him now and a power hitter finds it difficult to just push the ball around, he's got to come into his own. He's in the air for a bit. Just 1 run for Saad. Yeah, Anwar Ali, I think Danish is a better chance. That the luxury of Danish is in their side. He can hit big too. Then can come, Anwar Ali can come in the last 3. So can Sohail Khan can hit. They've got pretty decent hitters in their side. But at the moment they're doing fine, just fine. For another couple of overs, get to that 115 mark by 15 and then look to launch. He'll keep on doing this all day, Sarfaraz. So good with those single, finding the gap, playing it with soft hands. Knows how to play on certain pitches. That's the Sindh camp. The new coach, Ghulam Ali, has done a wonderful job. Giving the opportunities to the youngsters. Sindh cricket flag, Markhor. No idea where it went. Good catch by Imran Khan. Oh, he spilled it. And now run out. Chance was there. He could have ran with the ball in his hand. I can't believe it. He tried to throw. The keeper didn't have any idea what was going on. An absolute series of errors out there. Ordinary cricket from both sides. First the drop catch, then the fielder, Kamran Ghulam, not realize the batsman has no idea. He could have walked to the stumps and ran him out. That was Imran Khan, senior. Oh, look at that, he just spilled it out. Kamran Ghulam, he could have just run to the wickets. He would have still got the wicket. But he instead thought of throwing it and missed the chance. Imran Khan also disappointed. He caught it well. Oh, he's saying, Saifi bhai, what are you doing? That was his call. Sarfaraz Ahmed just called him for 1 and then just went quiet. And Saad Khan was in no man's land. Have a look at that again. Saifi calls, he's just half there.
Probably he didn't realize that he's dropped it. Nobody realized it. Not even Sikandar Bakhtiar in the commentary box. Just be a single there. 101 for 3 after 14. Yeah, almost everyone's got the start. Shajil Khan scoring 12. Saim Ayub really good, looked good for his 23 runs. The captain Saud Shakil would manage only 20 runs. Saad Khan is looking really dangerous on 33. With him is the ex-captain, Sarfraz Ahmed. It's 101 for 3 after 14. Bowling change right arm. Right arm bowling over. So Imran Khan Senior is back. Can he make it up for that drop catch? The partnership is 17. Getting dangerous for KP side. Imran Khan has this habit of breaking the partnership, getting those important wickets. Let's see what he can do here. Call is for 2. He will push for 2. And the non-striker takes it. That's good running. That is superb cricket by Sarfraz. Played it with soft hands right in between the two fielders. And the moment he hit it, he knew that 2 was on. And they ran well too. Superb cricket. Royal Lifestyle. You can log on to their official Facebook page. The address is right there. Chance for you to win exciting prizes and be the next winner. Kingdom Valley Royal Lifestyle. Just so routine, like he lets the ball come to him. Uses soft hands, just taps it down for singles. If you actually take out this partnership, 20 of 17, there'll be many singles and twos in there. Families in big numbers today. It's nice to see. It's Sunday, yes. Beautiful weather, nice breezy weather. It was very, very warm and claustrophobic last evening. Usually when there is no wind, the signs of rain, and we did have some this morning. Light drizzle. Again, high on the bat, again in the vacant zone, because players are really very deep. Look at where the ball is, still in the square, and they've ran 2. There was no one there. Khalid Usman all the way from extra cover ran to that mid-wicket area to get the ball. Is it one shot? We'll have to wait for the umpire's decision. Have a look at that. Hit it right there in the middle. Khalid Usman coming all the way from extra cover. Fielding it from mid-wicket. Doesn't get any better than that for the batters. 2 taken. An excellent shot. That's an excellent shot. One of the best from him up till now in this innings. Makes me say that shot, yaar. Have a look at that. Brilliant use of the feet. Just gave himself enough room. The placement was just exceptional. Sir, for Sabzada Farhan could not do anything about that. This boy is talent, pure talent. Saad Khan, watch out for him. He will definitely be the next big thing for Pakistan. He's got the potential. And those middle orders, he's a very good middle order batter, something that we are all looking for. Definitely has the potential. Another boy with potential, Zishan Zamir. 16 wickets in under-19 ODI World Cup. Cheeky.
Just when you said he's one to watch out for, I was watching him. And I was like, what is he doing? Trying to impress you. No. Look at it. He's in no position to play that shot. Well, had he connected, you've been all Saad Khan. Well, ifs and buts. No, the idea was right, but the ball wasn't in that line where he wanted to hit it. It was going over his head. Wasn't on his right. He would like to play that over fine leg or something. Then eventually became over the keeper. "15 gone, Nelson on the board, 3 wickets down. मोहम्मद सरवर आफरीदी ने आज 4 ओवर सबसे पहले मुकम्मल कर लिए। खालिद उस्मान के अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। आदिल अमीन से शायद अब बॉलिंग ना कराई जाए क्योंकि ये दोनों बैट्समैन सरफराज और साद स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अरशद इकबाल और इमरान खान सीनियर अपना कोटा ज़रूर मुकम्मल करेंगे। इमरान का 1 ओवर रहता है। इमरान खान जूनियर को भी डेथ ओवर्स में लाया जाता है। अभी उन्हें दूसरा स्पेल करने के लिए बुलाया गया है पवेलियन एंड से, और वो अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करने के लिए आए हैं। से उठाकर खेला, फील्डर पहुंच जाएंगे गेंद के नीचे, और साहबजादा फरहान ने ये शॉट, ये कैच ले लिया, और इस तरह इस पार्टनरशिप का अख्ताम हुआ। गेंद बहुत ज्यादा बल्ले के नीचे लग गई थी, और इस तरह ये पार्टनरशिप जो अब पेशकदमी कर रही थी उसका खात्मा हुआ। गेंद आहिस्ता आई, इसलिए बल्ले के ज्यादा नीचे लगी। डिफीट हो गए स्लो डिलीवरी से। इमरान खान ने स्पेल का आगाज किया और बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद लगी। कोई भी ताकत इस शॉट में नहीं थी। साद खान अच्छा खेले, 40 रन बनाकर आउट हुए। सिंध की टीम 111 पर 4। अच्छी खासी रौनक है आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि हफ्तावार तातील का दिन है जुड़वा शहरों में, और इस पर तुर्रा ये है कि बहुत अच्छा मौसम भी है, इसलिए तमाशाई महसूस हो रहे हैं। पल पल से कुंग हवा चल रही है इस वक्त पिंडी में। बड़ा रोमान परवर सा माहौल है क्रिकेट देखने के लिए। सोने पर सुहागा कि विकेट बहुत शानदार है आज। अच्छा बाउंस है, अच्छी कैरी है, बॉलर्स को भी मदद मिली, और बैट्समैन का स्ट्रोक प्ले जो है बहुत शानदार था। इस मौके पर यह कमजोर शॉट था। डिफीट हो गए स्लो से साद खान। इनकी टीम को अगले गियर में जाने के लिए इस तरह के चांस लेने ही थे। आखिरी 5 ओवर्स में विकेट्स इन हैंड थी। साद खान खुश नहीं थे अपने शॉट से, लेकिन दानिश अजीज आए हैं अब, और इनका ये टूर्नामेंट कुछ मदम मदम सा रहा है। यकीनन आज के दिन अच्छे क्राउड के सामने कोशिश करेंगे कि इम्पैक्ट क्रिएट करें। अच्छा होमवर्क किया हुआ है इमरान जूनियर ने। दानिश अजीज यूं ही पहुंचे, शॉर्ट गेंद उनको की, जो कि एक तरह से उनकी कमजोरी समझी जाती रही है। लेकिन यहाँ जो सिंध के बैट्समैन हैं, सही मानों में अब उनकी आजमाइश है। गुलाम अली जो हेड कोच हैं, क्योंकि इस इनिंग्स को किस तरह से वो फिनिश करते हैं, लॉन्ग हैंडल का डेथ ओवर्स में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ तक ये सही पहुंचे
इनके पास मिडल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन हैं जिनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। इसलिए पावर गेम ना होने के बावजूद वो जो कमी है वो इनकी मिडल ऑर्डर अपने टेम्परामेंट से उसकी तलाफी कर लेते हैं और टेक्निकली भी ज़्यादा करेक्ट है, तो अच्छे बॉलों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलते, रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी है। लेकिन जो आखिरी 5 ओवर्स हैं ये अब पावर गेम, यहाँ से इनका स्कोर 160-170 तक जा सकता है और शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। विकेटें अगर खोते रहे तो शायद ये मोमेंटम खो दें। एक और अच्छा बाउंसर अंपायर ने इससे बैट्समैन की पहुंच के बाहर करार दिया साकिब खान ने, लेकिन जाहिर है कि बॉलर जो हैं वो शायद उनको इससे ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि वो किस सूरत में नहीं चाहते कि दानिश अजीज़ फ्रंट फुट पर आए और उसके बाद उन पर हमलावर हों। ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉल थी और काफ़ी ऊंची थी। जो मैं बात कर रहा था विकेट की, इस विकेट की ये खासियत है कि बगैर बाउंसर कराए भी आप बैट्समैन को क्रीज में पीछे धकेल सकते हैं। कमर और शोल्डर के दरमियान आप बैक ऑफ अ गुड लेंथ इतना बाउंस हासिल कर सकते हैं और वहीं पे दानिश ज़्यादा पसंद नहीं करते बॉलिंग को। इस बार स्लो गेंद करने की कोशिश की, इससे फुल टॉस बनाकर खेला लेग साइड में। जब ओवर में एक बाउंसर कंसीड कर देते हैं तो फिर बैटर्स ये समझते हैं कि शायद अब आप आगे बॉल करेंगे और वो उनको फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, लेकिन इस विकेट पे बॉलर्स के पास मजीद मार्जिन है कि बैक ऑफ अ लेंथ रहकर बगैर शोल्डर हाइट तक बॉल किए भी बैट्समैन को धकेल सकते हैं। 3 फील्डर्स बाउंड्री पर, सरफराज के लिए ऑन साइड पर। एक बार फिर स्लोअर वन की सरफराज अहमद को अपना शॉट चेक करना पड़ा, लेकिन गैप में खेले थे इसलिए एक रन उन्होंने मजीद पाया। 117 पर 4 सिंध 16 ओवर्स के बाद। आसमान पर इस वक्त अच्छे खासे बादल मौजूद हैं। मगरिब की जानिब से हवा तेज़ होना शुरू हुई है और ये पवेलियन का जो इलाका है इस इमारत के ऊपर बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। स्कूप करने की कोशिश की लेकिन गेंद ज़्यादा आगे गिरी नहीं थी, इससे सरफराज को मुश्किल पेश आई। एक ज़माने में ये फास्ट बॉलर को स्वीप शॉट खेल दिया करते थे, जब नए नए थे तो काफी गैर मामूली शॉट खेला करते थे लेग साइड में। वन लेग का फील्डर ऊपर है तो यही गैप वो तलाश कर रहे थे। आपकी स्क्रीन की दाएं जानिब ज़्यादा पावर गेम सरफराज की भी नहीं है, लेकिन इम्प्रोवाइज अच्छा करते हैं, भागते तेज हैं। सिंध की टीम अभी भी इस पोजीशन में है कि वो 170 के करीब पहुंच सके। 165 तक भी अगर ये पहुंच जाते हैं तो ये अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा की जो बैटिंग है इसमें मसाइल हैं। पहले इन्होंने जो 2 मैचेस जीते उनमें वो बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले थे। इनकी बॉलिंग ने आकर इनकी लाज रखी थी। सिंध वो टीम है जिसने टूर्नामेंट का बेहतरीन स्कोर भी बनाया है। 190 रन उन्होंने बनाए थे नॉर्दर्न के खिलाफ। इन आखिरी 5 ओवर जो हैं वो सिंध की बैटिंग की भी कमजोर कड़ी रहे हैं इस टूर्नामेंट में। एक और शॉट गेंद दानिश अजीज के खिलाफ, ये हर बार खासा कारगर रहा है। यहाँ दूसरा रन नहीं लेने दिया कामरान गुलाम ने, बर वक्त पहुंचे। इसकी वजह यह कि दानिश लो हैंड्स के साथ खेलते हैं, वो बाउंस को कोप करना और राइड करना। इसमें सिंध के पिछले मैचों में
आखिरी 5 ओवर्स में सिंध की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही बैटिंग यूनिट की। 32 रन बनाए पहले मैच में, दूसरे मैच में 38 और तीसरे मैच में 38। मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में 5 ओवर्स, आखिरी 5 ओवर्स के ये आदाद शुमार जो है ये काफ़ी कम लगते हैं। अभी अब लो हैंड्स की बात कर रहे थे दानिश अजीज की, सरफराज अहमद का भी तकरीबन यही अंदाज है, लेकिन सरफराज अहमद जो है वो दानिश अजीज के बरक्स पहले फ्रंट फुट पर नहीं आते हैं, यही फर्क है। ये परेशान होते नहीं हैं। दानिश के साथ ये मसला हमने जनूबी अफ्रीका में देखा था जब वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। सेंचुरियन में पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में इनको परेशानी हुई थी साउथ अफ्रीकन पेस के सामने। थ्रो नहीं की फील्डर ने 1 रन से। इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम ज्यादा बुरा नहीं मनाएगी स्टेज पर। अरशद इकबाल ने सिर्फ 4 सिंगल्स दिए हैं पहली 5 गेंदों पर। वही मसला सिंध का आ रहा है अभी भी। पिछले 2 ओवर्स में सिर्फ 10 ही रन बन पाए हैं। दानिश अजीज की जो स्ट्रगल्स हैं तेज बॉलिंग और बाउंस के खिलाफ, बिलखुसूस फुटवर्क और उनका सेटअप है, कुछ मसले मसाइल मौजूद हैं उसमें। यॉर्कर को टिक आउट किया सरफराज अहमद ने। इस ओवर की आखिरी गेंद थी ये अरशद इकबाल की। 17 ओवर्स जो हैं वो इख्तिताम को पहुंचे, 122 पर चल। ये मोहम्मद इमरान जूनियर हैं जिन्होंने आज 2 बड़ी अहम विकेटें हासिल की। अच्छा रफ्तार में रद्दोबदल करते हुए नजर आए हैं और लेंथ में भी 1000 फुल टॉस बनाकर खेला। इसका फायदा उठा नहीं सके, इसलिए सरफराज अहमद उससे खुश नहीं थे। बॉल उन्हें मिल गई थी जहां वो चाहते थे, लेकिन एक्सिक्यूशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। ज्यादा लूज बॉलिंग की नहीं खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स ने। ये एक मौका था सरफराज के पास, बिल्कुल भी अपने आप से खुश नहीं थे। 15 ओवर्स के इख्तिताम पर स्कोर 111 था, तो तब से 13 गेंदों में सिर्फ 12 ही रन आए हैं। और सिंध की जो कमज़ोर कड़ी है आखिरी 5 ओवर्स तक वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़ी शॉट्स की ज़रूरत है यहाँ पर। दानिश अजीज के लिए थर्ड मैन पर इमरान को पीछे भेज दिया गया और उठाया इसे शानदार अंदाज में। लाजवाब हिट थी और गेंद बाउंड्री के बाहर जा पड़ी। दानिश अजीज इस बार टाइम करने में कामयाब हुए, पीछे हटे और मिड ऑफ को इस आहिस्ता गेंद पर आसानी से सर कर लिया। 2 साल पहले इसी मैदान पर इसी टीम के खिलाफ बहुत ही मारकतुल आरा इनिंग्स खेली थी दानिश अजीज ने और पाकिस्तान टीम तक रसाई हासिल कर गए थे उस चैंपियनशिप के बाद। ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये बॉल आगे थी, उनके जोन में थी, लो डिलीवरी को अच्छा पिक कर लेते हैं। इस लेंथ पे अच्छी रेंज है उनके पास शॉट्स की। और एक और, ये उससे भी बड़ा गेंद गई मीलों दूर। दानिश अजीज ने 2 यके बाद तीसरे छक्के लगाकर यहां सनसनी फैला दी है और अपनी मौजूदगी का पहली मर्तबा एहसास दिलाया। ये 2020 जैसी इनिंग्स लगती है पिछली 2 गेंदों का अगर देखें। जैसी बॉल बल्ले से टकराई, फिजा में तैरती हुई बॉल सीढ़ियों पर जा गिरी। बहुत ही लंबा छक्का दानिश अजीज का, तकरीबन 15 से 20 रोज बैक जाकर स्टैंड में बॉल गिरा। 72
यार्ड की बाउंड्री, तकरीबन 90 यार्ड की हिट थी। हैट्रिक चांस। बाउंसर के लिए तैयार जरूर थे, लेकिन यहाँ सही तरीके से इसको डिस्पैच कर नहीं सके दानिश। अच्छा मुकाबला हो रहा है दानिश अजीज और इमरान जूनियर के दरमियान। उनको बाउंसर्स कर रहे थे और इस ओवर में जो ही लेंथ मिली तो जवाबी वार कर दिया। इस टूर्नामेंट में ज्यादा कोई चमके नहीं, लेकिन आज उनका आगाज अच्छा है। एक और आहिस्ता गेंद थी, 1 रन का और इजाफा। आप समझते हैं तारिक कि इस विकेट पे जहां पे इतना कैरी है और हार्ड लेंथ पे आपको हिट करना मुश्किल है, गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान जूनियर, क्या ये मुनासिब होगा कहना? जी हाँ, शायद जो है उनका ये ख्याल है कि पुरानी गेंद है, मुमकिन है ग्रिप कर जाए इस पिच पर, लेकिन ये बैट्समैन जो है स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों, इसलिए ये खतरे से खाली नहीं है। इस मौके पर दानिश या सरफराज अहमद के खिलाफ इस तरह का हरबा इस्तेमाल करना ये बहुत ही महंगा ओवर रहा। 16 रन्स देकर गए हैं इमरान खान जूनियर 138 4 विकेट पे। सूरज ने आज पहली बार यहाँ पर अपनी झलक दिखाई है। बादलों की ओट में ही रहा है तमाम दिन रावलपिंडी का सूरज, लेकिन इसके बावजूद रोशनी बेहतर रही है। मैदान पर फ्लड लाइट्स के बगैर क्रिकेट जारी रही। इमरान जूनियर के बाद इमरान खान सीनियर ने भी और डिलीवरी से ओवर का आगाज किया, लेकिन लेंथ विकेट में बॉल की फिर भी अच्छा बाउंस मिला। उम्मीद के हामिल हैं ये 11 गेंदें हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में हमने कई दफा देखा है फतह और शिकस्त का मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं रहा। 1-1 रन पे यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट हो रही है इस मैच में भी। यहाँ इस बार आइडिया यही था कि इससे पॉइंट और पॉइंट के पीछे खेल दिया जाए, क्योंकि वहाँ बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर कवर में है, लेकिन ज़्यादा पीछे हट गए थे, और दूसरा जब रफ्तार कम हुई तो उसको भी भांप नहीं सके बर वक्त। ये देखिए थर्ड मैन पर उस इलाके में 2 फील्डर हैं दायरे के अंदर। फाइन लेग को भी इस वक्त 30 गज के अंदर खड़ा किया हुआ है आमिर जमाल को। 2 फील्डर उस बाउंसर के लिए, एक स्कोर के पीछे है, एक स्कोर के सामने है लेग साइड में। समझिए और कर दिया। यहाँ पर दूसरे रन की गुंजाइश है। सरफराज आ रहे हैं और दानिश अजीज वो भी पहुंच गए। अच्छी दौड़ लगाई दोनों ने। सरफराज को क्रेडिट देना होगा, जिस तरह ही बॉल बल्ले को टकराया उन्होंने 2 की कॉल की और दानिश को पुश किया। हालांकि सरफराज डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे, लेकिन थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर गई। देखिए सरफराज ने काफी अर्ली स्टार्ट ले लिया था और वो कंफर्टेबल थे। अच्छी थ्रो होती तो दानिश को मसला हो सकता था, लेकिन अच्छा प्रेशर डाला है सिंध के दोनों बैटर्स ने। ओवर में बाउंड्रीज नहीं आई अभी तक। इस इनिंग्स में भी उतनी बाउंड्रीज नहीं आई। 12 चौके और 3 छक्के इनिंग्स में लगे हैं, लेकिन ये सिंध के यहाँ तक पहुँचने का जो सेहरा है बड़ी हद तक ये रनिंग को जाता है। ये मौका ज़ाया कर दिया। अंपायर से वाइड का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन गेंद जो है स्टंप्स के बहुत ऊपर से गुजर गई। हद से ज्यादा आगे निकल गए थे दानिश। बॉल काफी स्लो था, एक मौके पर लगा कि शायद
वो शॉट उनके मर्जी का बन जाएगा, लेकिन फिर बाउंस की वजह से डिफीट हो गए, क्योंकि आखिर में उछल के खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हुआ। वाइड तो बिल्कुल भी नहीं थी, लाइन पर तो वाइड नहीं थी, और हाइट पर भी अंपायर ने डिसाइड किया कि शोल्डर और हेड के दरमियान थी। हार्ड लेंथ पर बहुत उम्दा बॉलिंग इमरान खान सीनियर ने की है, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब के खिलाफ जो उनका स्पेल था डेथ ओवर्स में, वो मिसाली रहा। देखिए अपनी लेंथ को किस तरह ये मिक्स कर रहे हैं। शानदार यॉर्कर, पहले 2 बाउंसर्स किए, उसके बाद यॉर्कर फेंका। बैट्समैन ये बिल्कुल वो पांव जमने नहीं दे रहे और अपने तजुर्बे को यहाँ पर बरूए कार ला रहे हैं इमरान खान सीनियर। इनिंग्स के दूसरे हाफ में हम कह सकते हैं कि अभी तक मासिवाय एक उस ओवर के जिसमें इमरान जूनियर को आड़े हाथों लिया, दानिश अजीज ने को खातिर खास सिंध ने कारकर्दगी दिखाई नहीं। एक और खूबसूरत यॉर्कर, बिल्कुल पिन पॉइंट, कोई जवाब नहीं था दानिश अजीज के पास, और यहाँ पर जी जान से ये ओवर मुकम्मल किया इमरान खान सीनियर ने, और साथ साथ अपना कोटा भी 140, 4 खिलाड़ी आउट। अनवर अली अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बहुत ही शानदार ओवर किया, सिर्फ 2 रन बने, और डेथ पर बॉलिंग का एक बहुत ही शानदार मुजाहरा था इमरान खान की जानिब से। शाहिद इकबाल इस इनिंग्स का आखिरी ओवर करेंगे। फिर अभी तक आखिरी 4 ओवर्स में सिंध की टीम ने सिर्फ 29 रन बना रखे हैं, में से भी 16 ओवर्स इमरान जूनियर के 1 ओवर में आए। सरफराज अहमद इस बार भी 1 से ज्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे। सिंध को बाउंड्रीज की तलाश है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा, तो कम से कम इनको 150 रन से तो आगे जाना होगा। बॉलिंग अटैक खासा ताकतवर है सिंध का, इसमें कोई शुबा नहीं। उनके पास ज़्यादा बासलाहियत बॉलर हैं, ज़्यादा वैरायटी है एपी के पास। ओके, टैक्टिकली इनके पास इनकी बॉलिंग जो है बहुत मजबूत है, लेकिन सिंध के पास क्योंकि लेग स्पिनर हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, ये फास्ट बॉलर्स फॉर्म में हैं, से मुकाबला होगा। यहाँ से आगे जितने भी रन्स बनते हैं, 1-2 बाउंड्रीज अगर लग जाती हैं तो मोमेंटम जो है वो रीगेन हो सकता है। इमरान खान का पिछला ओवर, आप जो चीज देखने वाली है वो लेंथ और पेस की वेरिएशंस देखें। बहुत ही परफेक्ट यॉर्कर था तीसरा, और के अलावा पहले डॉट बॉल, फिर ये 2 रन बने, उसके बाद 3 मजीद डॉट बॉल, लेकिन जो कंट्रोल था स्पीड और लेंथ की वेरिएशंस का, पिन पॉइंट एक्यूरेट, और नतीजा दानिश अजीज। क्या ये विकेट के सामने है, ये पलट कर पूछा था अंपायर साकिब से, यहाँ लेग बाई का दूसरा रन मिलेगा, और क्या आप पहुंच सके हैं दानिश? एक बार फिर पूछा है यहाँ ये सवाल, और टीवी अंपायर जो हैं अब ये उनकी अदालत में ये मुकदमा चला गया है कि क्या दानिश अजीज पहुंच सके थे या नहीं दूसरे रन के लिए। लगता है अरशद इकबाल की कोहनी से बेल्स पहले ही गिर गई थी। देखना यह है कि एक बेल गिरी है या दोनों गिरी हैं, क्योंकि दानिश तो बहुत दूर थे, बेल्स गिर गई हैं। लेकिन फिर आपको विकेट उखाड़ना चाहिए थी, लेकिन विकेट जो है उखाड़ नहीं ये सकें, या एक ही बेल गिरी थी, ये भी एक सवाल। अगर एक दूसरी बेल अपनी जगह पर थी तो फिर विकेट मिल सकती है। मुझे लगता है कि दूसरी बेल भी ग्रुप में से निकल गई थी, लेकिन एक दफा फिर शायद तीसरे अंपायर देखना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि अगर दोनों बेल्स जो हैं वो ग्रुप से निकल गई हों तो फिर ज़रूरी होता है कि विकेट आप उखाड़ें, उसी सूरत में ही आप रन आउट
के मजाज होते हैं। आया चाहता है फैसला बड़ी स्क्रीन पर टीवी अंपायर का। जो दूसरी बेल भी है अरशद इकबाल की बाईं कोनी के साथ, आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त ग्रुप से निकल चुकी है और अंपायर अपना टाइम ले रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं। ये आले हैदर जो हैं वो टीवी अंपायर हैं और अभी तक वो किसी फैसले पर पहुंचे नहीं हैं। इसमें तो कोई शुबा नहीं, जो पहली बेल सी वो निकल गई थी ग्रुप से और ऐसा लगता है कि गेंद जब इन्होंने वापस ला मारी है तो उस वक्त तक दूसरी भी निकल चुकी थी। आसान फैसला होना चाहिए, ये नॉट आउट होना चाहिए। सरफराज अहमद अच्छी तरह जानते हैं, शायद मुत्तला कर दिया गया ज़बानी तौर पर फील्ड अंपायर को कि नॉट आउट हैं दानिश अजीज। और फिर अच्छी लेंथ पर गेंद को दे मारा, दूसरा रन सरफराज अहमद दौड़कर बना लेंगे। गलती जरूर हुई अरशद इकबाल से, लेकिन सिंध को एक चांस मिला और दानिश और सरफराज कोशिश करेंगे स्कोर को 150 से ऊपर ले जाएं कम से कम। दो बड़ी हिट्स लगे तो 158 तक जा पहुंचेंगे। यही है कि 158 160 तकरीबन पार स्कोर है यहां पर। बुल शॉट खेला, यहां पर 2 रन मिलने चाहिए और 2 और मिल सकते थे लेकिन रास्ते में हाइल हो गए कामरान गुलाम। बहुत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। आमिर थोड़ा सा रॉन्ग फुट हो गया अपने डाइव में, तो बॉल को रोक तो नहीं सके, लेकिन कामरान गुलाम आ रहे थे, वो ये समझते हैं कि शायद 4 रन हो चुके हैं, लेकिन थर्ड अंपायर जरूर देखना चाहेंगे। हाथ के बजाय पांव का इस्तेमाल किया, बॉल उनके पांव से लगती हुई बाउंड्री स्कर्टिंग के पास गई और बाउंड्री स्कर्टिंग को लग चुकी थी। यहाँ अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई कामरान गुलाम ने, खुद ही वो दस्तबरदार हो गए अपनी इस कोशिश से। 150 रन भी सिंध ने मुकम्मल किए सरफराज के इस चौके की मदद से। एक बाउंड्री और चाहिए, स्वीप शॉट खेलने के लिए जाएंगे, यॉर्कर करने के लिए गए और एक ही रन यहां पर बन सका। बहुत ही अच्छा इख्तिताम किया यहां खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स ने और उन्होंने आखिरी ओवर्स में बिल्कुल सर उठाने का मौका दिया नहीं। खास तौर पर अरशद इकबाल और इमरान खान सीनियर्स ने इनको जो जिम्मेदारी कप्तान और कोच ने सौंपी थी, एक मरतबा फिर वो उन्होंने निभाई पूरी तरह। दानिश अजीज 15 गेंदों में 21 रन बना सके इस पार्टनरशिप में। सरफराज अहमद ने 27 रन बनाए और नॉट आउट वापस आ रहे हैं, लेकिन बाउंड्रीज का फुकदान रहा। दानिश ने 2 छक्के लगाए और सरफराज अहमद अपनी इनिंग्स में 1 चौका लगा सके। 151 रन, ये इतना भी आसान हदफ नहीं है, लेकिन इस वक्त मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और बाजार वो ज्यादा खुश टीम नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने तारिक, और विकेटें हाथ में होने के बावजूद आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 40 रन आए। 2 सेट बैटर्स भी खेल रहे थे, लेकिन 40 का मजमू आखिरी 5 ओवर में, इसका मतलब है कि सिंध ज्यादा स्कोर कर सकता था। 7 टॉप स्कोरर रहे, 40 रन उन्होंने बनाए। सरफराज ने भी 27 रन बनाए। दानिश पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में अपने रंग ढंग में नजर आए, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए। 15 गेंदों पर 21 बनाकर नॉट आउट रहे 8 एक्स्ट्रास के साथ। 20 ओवर्स में सिंध का टोटल 151। खैबर पख्तूनख्वा की बॉलिंग हस्बे रिवायत बहुत शानदार रही। इमरान खान को विकेट्स तो नहीं मिली, लेकिन बहुत ही कंट्रोल के साथ और शानदार बॉलिंग उन्होंने की। इमरान जूनियर 2 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे, 30 रन उन्होंने दिए और मोहम्मद सरवर ने भी 4 ओवर्स में 26 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और अब हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के टॉप स्कोरर साद खान। साद, आपको आवाज आ रही है मेरी?
साद आप बहुत अच्छा खेले आज। जब आप खेल रहे थे तो उस वक्त आपने विकेट पे काफ़ी वक्त गुजारा, कैसी लगी आपको विकेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मैं आया हूँ, और दूसरा ये कि विकेट काफ़ी अच्छा था, विकेट बहुत अच्छा खेल रहा था, जिसकी वजह से हमारा मेरा और सऊद भाई के बीच में जो एक बात हुई थी वो ये थी कि हमने 160 प्लस टारगेट कुछ अचीव करना है। तो विकेट बहुत अच्छा खेल रहा था, तो हम बहुत अच्छा खेले, 152 रन हैं, लेकिन ये कि 8 रन शॉर्ट हैं। और आप T20 में ये पहला सीज़न खेल रहे हैं सिंध की तरफ से, आपके स्कोर्स कंसिस्टेंटली हो रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहला एक्सपीरियंस है मेरा सिंध की तरफ से T20 खेल रहा हूँ, और मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मेरा 30 और 40 रन हो रहे हैं इसको मैं आगे लेके जाऊँ, और अपनी टीम को जितना फ़ायदा हो सके मैं चाहूँगा कि इसको और लंबा लेके जाऊँ। और इस टारगेट को क्या देखते हैं कि आपकी टीम डिफेंड कर लेगी ये? जी, हमारे बॉलर माशाल्लाह से एक्सपीरियंस बॉलर हैं, सोहेल भाई, मीर भाई और अनवर भाई, फिर बाद में अबरार हैं और जायद भाई हैं, दानिश भाई हैं। तो ये कि ये टोटल हम इंशाल्लाह इतनी आसानी से अच्छे टारगेट अचीव नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। चलें साद, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप खेले, वेल प्लेड। थैंक यू। और उसी में कामयाबी मिलती है। और का आगाज़ जो शर्जील ने किया, उनके साथ साइम मौजूद थे और ऑफ साइड में खासे मजबूत लगे। साइम गेम को टाइम करते हुए नजर आए, बड़ा खूबसूरत कवर ड्राइव भी इस पैकेज का हिस्सा था, और उसके बाद दिलकश ऑन ड्राइव्स खेले। शर्जील खान जो इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म शो नहीं कर सके, वो ऑफ स्पिनर आदिल की गेंद पर आउट हुए। उसके बाद सऊद बैटिंग के महाज पर पहुंचे और अच्छी पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी, और एलबीडब्ल्यू आउट हुए साइम, और उसके बाद सऊद ने चंद और बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी थी, मिस फील्डिंग का भी इनको फ़ायदा हुआ, और खालिद उस्मान की गेंद पर कट शॉट खेला सऊद ने। और ये वो मरहला था जब रन्स बनते हुए नजर आ रहे थे, स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, और सिंध को एक मजबूत बुनियाद फराहम कर दी थी कप्तान ने। फिर वो आउट हो गए, स्क्वायर लेग पर बहुत ही अच्छा कैच माज खान ने उनका लिया, और फिर एक और विकेट गिर गई। और यहाँ जो है विकेट का इम्कान था। साद खान ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो इनिंग्स की टॉप स्कोरर है, 111 मजमुआ था जब वो पवेलियन वापस गए। फिर एक ही ओवर में 2 छक्के इमरान को लगाए। यहाँ पर दानिश अजीज ने, ये आज के दिन का सबसे बड़ा छक्का था। और यहाँ सरफराज अहमद और दानिश के दरमियान रनिंग के दौरान रन आउट का मौका था जो अरशद इकबाल ने गवा दिया। उनने बेस को पहले ही हटा दिया था गेम पहुंचने से भी पहले, और आखिरी ओवर में सरफराज अहमद ने पुल शॉट पर ये चौका हासिल किया और सिंध को 151 तक पहुंचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल तीसरा मैच जीतने के लिए 152 रन दरकार हैं 7.60 के औसत से, और खैबर पख्तूनख्वा का जवाब जानिएगा एक वक्फे के बाद।
हाँ, एक बार फिर आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खुशामदीद कहते हैं, जहां पे खबर यह है कि नेशनल T20 का ये 10वां मैच खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के माबैन जारी है। किंगडम वैली नेशनल T20 कप 2022-23 का ये 10वां मैच है, यहाँ पे सिंध ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छा आगाज मुहैया किया था शर्जील खान और साइम ने, चिप इन किया सारे बैटर्स ने। शोएब शकील ने भी अच्छी बैटिंग की। साद खान पिक ऑफ द बैटर्स है जिन्होंने 40 रन बनाए। सरफराज अहमद 27 और दानिश अजीज 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शायद जैसा फिनिश वो चाह रहे थे वैसा हो नहीं पाया। बॉलिंग कार्ड 6 बॉलर्स को इस्तेमाल किया। सबसे बेहतरीन बॉलर रहे मोहम्मद इमरान जूनियर जिन्होंने 2 विकेट हासिल की, 30 रन देकर। 1 विकेट हासिल की आदिल नमीन ने और 1 विकेट हासिल की मोहम्मद सरवर ने। खैबर पख्तूनख्वा को ये मैच जीतने के लिए 152 रन की ज़रूरत है। बहुत ही शानदार बॉलिंग लाइनअप है सिंध की। आसान नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत ही तजुर्बेकार और बेहतरीन बॉलर्स इस सिंध की साइड में शामिल हैं। सरफराज अहमद खुश नहीं होंगे क्योंकि जिस तरह का फिनिश ये चाह रहे थे उस तरह का हो नहीं सका। बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही आखिरी 2 से 3 ओवर्स में खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स की जानिब से। दानिश अजीज ने 2 छक्के ज़रूर लगाए लेकिन उस तरीके से कर नहीं पाए फिनिश जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी उनसे। यहाँ पे एक बड़ा इम्तिहान सिंध के लिए, किस तरीके से ये मैच डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 ओपनर्स मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान, बहुत ही टैलेंटेड मोहम्मद हारिस। केपी की ऐसी साइड है कि जो कभी भी मैच से आउट नहीं होती है। आज भी हमने देखा बहुत अच्छा आगाज किया था सिंध ने, लेकिन पुल बैक किया सऊद शकील और उनके। यहाँ पे काफी काम करना होगा सऊद शकील को। तारिक सईद मेरे साथ मौजूद हैं। अरे भाई फिनिश नहीं कर पाए सिंध। जहाँ इसीलिए जो मोमेंटम है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। अच्छा आगाज़ मिल गया था। सऊद शकील जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे लगता था कि बात जो है वो 170 तक चली जाएगी, लेकिन फिर जो फाइट बैक करने की शोहरत है खैबर पख्तूनख्वा की वो उस पर पूरा उतरे। एक साख बन गई है इस टीम की कि हर तरह के हालात से वापस आते हैं, पलट कर वापस वार करने की अहलियत है इस टीम में। लेकिन ये स्कोर जो है हम कह सकते हैं कि ये किसी हद तक पार स्कोर है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में रन चेज हमने होते हुए देखे नहीं है, सिवाय एक मैच के। बाकी जो मैचेस खेले गए 8 ऐसे मुकाबले हुए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ही कामयाबी ने उसके कदम चूमे और स्कोर को डिफेंड किया है। कम स्कोर को भी, बड़े स्कोर्स को भी सिंध के बॉलर्स ने। तो आज अगर नई गेंद पर उनको विकेटें मिल जाती हैं तो फिर हौसले बुलंद हो जाएंगे। मीर हमजा इन कंडीशंस में गेंद को स्विंग कर सकते हैं। अच्छी सपोर्टिंग पिच है रावलपिंडी की। साजिद आफरीदी जो कि मीडिया सेंटर एंड पर हैं, इसी तरफ से बॉलिंग का आगाज करेंगे। मीर हमजा एक स्लिप के साथ साहिबजादा फरहान को स्विंग, पहली गेंद पर इनवर्ड। जी हाँ, ये काफी खुशाइन बात होगी मीर हमजा के लिए। बॉल पड़ने की तरफ के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आया और मीर हमजा माने जाते हैं स्विंग बॉलिंग के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग बिल्ड फास्ट बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर रहे हैं ये सिंध के लिए ओवर द इयर्स। यहाँ पे भी सिंध चाहेंगे कि अर्ली विकेट्स हासिल करके दें, क्योंकि शायद साहिबजादा फरहान, हारिस और कामरान गुलाम की अगर हम बात करें उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है नहीं ऐसे केपी की। एक बार फिर स्विंग करने की कोशिश की लेकिन अच्छी पोजीशन में आकर खेला साहिबजादा फरहान ने। पहला स्कोरिंग शॉट जिसमें 2 रन्स उनको हासिल हो गए। दाद देनी होगी केपी के डेथ बॉलर्स को। फिर हम देखते हैं जिस तरह से लेग साइड से स्विंग करने की कोशिश की थी, यही अगर ऑफ स्टंप के बाहर से इन स्विंग करने की कोशिश करें तो ज्यादा कारआमद हो सकते हैं मीर हमजा। इमरान अहमद उन्होंने स्लाइड करते हुए बिल्कुल गेंद के ऊपर चले गए। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, उम्दा लाइन, उम्दा लेंथ
मीर हमजा ये पिछले 12 माह में इन्होंने मिसाली बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई है। जिस टीम के लिए भी खेले हैं, कराची किंग्स के लिए PSL साथ में आए थे और वहाँ पर भी इन्होंने खासी विकेटें ली थी। बिल्कुल टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में इनको कराची किंग्स की टीम का हिस्सा बनाया गया था। कायदे आज़म ट्रॉफी में भी टॉप विकेट टेकर्स में से एक थे। और गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की एहलियत रखते हैं। डेथ ओवर्स में भी इन दिनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इससे सऊद शकील हम कह सकते हैं कि ये इनके अटैक लीडर हैं, मीर हमजा के कप्तान के। जी हाँ, बिलाशुबा। और बहुत खुशाइन होते हैं वो कैप्टन, जब उनके खुशकिस्मत होते हैं वो कैप्टन जब मीर हमजा के साथ सोहेल खान जैसे बॉलर बॉल करेंगे। एक्सपीरियंस्ड हैं, विकेट लेना आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंध की जो बॉलिंग साइड है ये बहुत कंप्लीट बॉलिंग साइड है। अगर आप उनकी स्पिन डिपार्टमेंट भी देखें, ब्रार हैं उनकी साइड में, उसके साथ उनके पार्टनर दूसरे बॉल करेंगे। दानिश अजीज लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकते हैं, तो अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। अभी तक खामोश रखा हुआ है मीर हमजा ने। साहबजादा फरहान को स्लिप को अलबत्ता हटा लिया गया। ऑन साइड में एक इजाफी फील्डर मौजूद हैं, शर्जील खान। गेंद उन्हीं के सामने से गई। इनफॉर्म ओपनिंग बैट्समैन साहबजादा फरहान जो हैं कई उम्दा इनिंग्स खेल चुके हैं। नॉर्दर्न के बॉलर्स की इन्होंने दिल खोलकर पिटाई की थी। उन्हें चौके और छक्के लगाए थे, खासतौर पर स्पिनर्स को उनके सामने ये बहुत बुरी तरह पेश है। अच्छा ओवर, शानदार इब्तिदा मीर हमजा की जानिब से। सिर्फ 3 रन उन्होंने दिए और सिंध की टीम को साथ साथ एक हौसला भी। पहला ओवर इख्तिताम को पहुंचे। सोहेल खान बहुत ही तजुर्बेकार बॉलर हैं। एक खसूसियत है इनमें कि विकेट लेना जानते हैं, इसलिए 144 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। 123 और मैच खेल रहे हैं। 5 विकेट्स इनका बेहतरीन बॉलिंग है। यहाँ पे साउथ चाहेंगे कि अर्ली विकेट्स लेके दिए जाएं। अगेंस्ट द विंड आ रहे हैं यहाँ। और इस वक्त जो हवा चल रही है ये आपकी स्क्रीन के ये बाएं से ये दाएं जानिब चल रही है। यहाँ तस्वीर करते चले, ये आपकी स्क्रीन के बाएं से दाएं जानिब इस वक्त चल रही है और इससे इनको आउट स्विंग करने में मदद मिलेगी। ये अच्छा फैसला था इस एंड से सोहेल खान को लाने का। ये पहले मैचेस में मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग करते रहे थे, लेकिन सऊद शकील ने पहले मीर हमजा को मीडिया सेंटर एंड से लाए। उनको इन स्विंग करने में मदद मिली और अब आउट स्विंग करने में इस हवा की वजह से सोहेल खान को मदद मिल रही। बहुत ही अच्छी कप्तानी सऊद शकील की जानिब से। यहाँ पहले बॉल पे रियलाइज किया कि गेंद आउट स्विंग हुआ है, तो फील्डर जो मिड विकेट में थे वहाँ उनको निकाल के स्लिप में ले आए हैं। ये अच्छी कप्तानी, जैसे आपने कहा, अटैकिंग कप्तानी है, क्योंकि अर्ली विकेट्स चाहिए। जितने कैचिंग पोजीशन में होंगे उतना ही चांस होगा। शर्जील खान स्लिप में मौजूद हैं। ऑफ साइड में शर्जील के अलावा भी 6 फील्डर इस वक्त मौजूद हैं। और उठाकर खेल दिया और मौका है, फील्डर नहीं पहुंच सके। अच्छी कोशिश की थी साद खान ने। यहाँ खुशकिस्मत रहे साहबजादा फरहान, बॉल बहुत देर हवा में रहे, लेकिन थोड़ा जैसे आपने कहा हवा की वजह से बॉल परे से परे चलता गया फील्डर से,
ये साद खान का शुमार अच्छे फील्डर्स में होता है। देखिए हवा की वजह से काफी देर बॉल हवा में रहा था, अब परे से परे तक चला गया। ये शॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगेंस्ट द स्विंग खेलने के लिए चले गए साहबजादा फरहान। ये ज्यादा बेहतर तरीका है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड्स जाकर देखें बाकी मादा ओवर जब आप परेशान हो रहे हों किसी बॉलर की स्विंग से। दायरे का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है एपी के बैटर्स के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा सेंट्रल पंजाब इसी वजह से पीछे रह गए मैच में, जो ऐसा मैच था जो उनको जीतना चाहिए था, लेकिन उस दायरे में सुस्ती की वजह से पीछे रह गए मैच में। क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुराना होता चला जाता है इतने आसानी से हिट लगते नहीं है, इसलिए नए बॉल पे अटैक करना बहुत ज़रूरी है। गेंद को करीब गिराया और फौरन ही अपना पहला रन हारिस ने हासिल किया। ये अच्छा ओपनिंग पेयर है हारिस और साहबजादा फरहान का, और इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। विकेटें मिलती रही हैं सऊद शकील के बॉलर्स को नई गेंद के साथ, इसी वजह से ये टीम मुखालिफ जितनी भी साइड्स थी उनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में नकब लगाने में कामयाब हुई, और इतना आसान रहा नहीं सिंध के खिलाफ रन्स बनाना इस टूर्नामेंट में। बहुत मुतवाज़िन इनका बॉलिंग अटैक है। और प्ले में 7 विकेटें हासिल की हैं सिंध के बॉलर्स ने। विकेट्स लेना उनको आता है, इस बारे में बात जारी रखेंगे। 2 ओवर्स के बाद 7 बगैर किसी नुकसान के खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा को 145 रन्स की जरूरत है 108 बॉलों पे। उनका मुकाबला है मीर हमजा से। ऐसे खेलने में कामयाब हो गए बड़े खूबसूरत तरीके से, बर वक्त अपना बल्ला गेंद तक लाए हारिस, और ये लैप शॉट खेलकर उनने अपना पहला चौका लगाया। बड़ी दलेरी के साथ ये स्ट्रोक खेला और बड़ा अच्छा एंटिसिपेट भी किया ओपनर ने। या ऐसे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको पता था कि बॉल किस जगह पे आएगा। बहुत ही स्मार्ट बैटिंग यहाँ पे हारिस की जानिब से माने जाते हैं अपनी अटैकिंग अप्रोच की वजह से हारिस। इसी वजह से पाकिस्तान टीम से खेलने का भी मौका मिला इन्हें, लेकिन यहाँ रोल एज एन ओपनर है वो डिफरेंट रोल है। ये नीचे रह गई, बाउंसर के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे हारिस। एक बात पूरे वसूख के साथ कही जा सकती है कि हारिस जो हैं ये ज़्यादा देर ये चुप रहने वाले नहीं हैं। जैसी भी पिच हो, जितने भी रन्स स्कोर बोर्ड पर दरकार हों, इनके खेलने का तरीका एक ही है और वही इनकी ताकत है। जारहाना बैटिंग करना, नई गेंद पर जाकर, और उस पर ये समझौता करते नहीं हैं। इसी मैदान पर इन्होंने अपना नेशनल T20 का डेब्यू किया था अब से 2 बरस पहले, और पहले मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई थी। उस वक्त बिल्कुल नए थे। मोहम्मद रिजवान ने अपनी जगह इनसे विकेट कीपिंग कराई और 50 रन बनाने के बाद वापस मुड़ के देखा नहीं है। उसके बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल गए हैं, क्योंकि अभी ये बेहतर होते जाएंगे। इनमें बड़ी सलाहियत है, बड़े शॉट्स हैं इनके पास, और इनकी विकेट कीपिंग पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर हो चुकी है। इस सीज़न में उम्मीद यही है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी यही विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। जी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत टैलेंटेड हैं, और केपी से जब भी खेलते हैं ओपन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जब खेले तो 4थे 5वें नंबर पे खेले थे, मिडिल ऑर्डर में खेले थे, इनफैक्ट लेट मिडिल ऑर्डर में खेले थे।
वहां पे शायद थोड़ा डिफरेंस जरूर आया इनकी बैटिंग अप्रोच में। लेकिन एक नेचुरल स्ट्रोक मेकर हैं, जैसे आपने कहा कि इनको रोकना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही क्लीन हिट करते हैं, अच्छे टाइमर हैं, ऑल्दो इतने मजबूत नहीं है लेकिन टाइम अच्छा करते हैं, लंबे छक्के मारते हैं। अब तक इस पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही बाउंड्री आई है, लेकिन ये दौड़कर रन्स बनाते हुए नजर आए हैं साहबजादा फरहान। सिंध की टीम ने भी बहुत ज़्यादा दौड़कर रन्स बनाए। फिर 15 बाउंड्रीज सिंध की इनिंग्स का हिस्सा थी। T20 क्रिकेट में कहा जाता है कि आइडियली जो है 25 बाउंड्रीज लगनी चाहिए एक इनिंग्स में, लेकिन विकेटों के दरमियान रनिंग अच्छी की सिंध ने, इससे वो भी मुकाबले पे मौजूद हैं। यही काम अब तक ये दोनों ओपनर्स भी खुश उसलूबी के साथ कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। अगले ओवर में स्ट्राइक पर होंगे हारिस, 14 पर कोई खिलाड़ी आउट। सुहेल खान दोनों बॉलर्स बड़ी नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं और इतना आसान हो नहीं रहा कि खतरा मोल लिए बगैर एक बड़ा शॉट खेल सकें साहबजादा फरहान और हारिस। सब कदरे मोहतात नजर आते हैं, क्योंकि ये पिच इतनी आसान नहीं है कि आप क्रीज पर पहुंचते ही तह तय कर दें बॉलिंग अटैक को। आपको रिस्पेक्ट देना पड़ती है नई गेंद को भी और हरीफ टीम के बॉलर्स को भी। और कुछ वक्त अगर आप गुजारते हैं तो फिर आसान हो जाती है बैटिंग बाउंस और पेस की वजह से। अच्छी गेंद नहीं थी, अच्छी विकेट कीपिंग सरफराज अहमद की। यहाँ पे एक बैलेंस ढूंढना होगा केपी की साइड को कि रन्स भी बनाने होंगे, विकेट भी बचाना होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो टीमें भी जो अटैक है वो लेट के लिए छोड़ रही हैं, डीप एंड के लिए छोड़ रही हैं, वो कामयाब नहीं हो रही हैं। जैसे आपने कहा कि इतनी आसानी से आते ही हिट नहीं लगती है, तो आपको वो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे रन्स भी आते रहें और विकेट भी बचे रहे। केपी में वो अहलियत जरूर है। जैसे ही ये दूसरी गेंद हुई, जो मिड ऑन के फील्डर थे उनको बाउंड्री पर अब भेज दिया गया, फाइनल लेग को आगे लाया गया साहबजादा फरहान, क्योंकि सीधा शॉट खेलने में ये मलका रखते हैं। बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया, गेंद ज्यादा टो पर लगी थी, लेकिन अच्छा टाइम करने में फिर भी कामयाब हो गए और डबल फिगर में पहुंच गए। या ये सही तरीका है इस पिच पे खेलने का, और ये हमें इससे पहले अली इमरान ने दिखाया था और अब साहबजादा फरहान दिखाते हुए कि अगर आपने बड़े हिट मारना है तो सीधा मारिए। ऑल्दो ज्यादा टाइम अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन प्लेसमेंट इतनी शानदार थी, फील्डर से परे थी, जैसे आपने कहा कि टो एंड पे लगा बॉल, लेकिन रिजल्ट साहबजादा फरहान के हक में रहा। जरूरत से ज्यादा जोर जो है सर्व किया साहबजादा फरहान को आप कम देखेंगे टिपिकल ओपनर्स की तरह के ग्राउंड शॉट्स खेलते हों। जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं तो जब जो ऑफ साइड में खेलते हैं या सामने खेलते हैं तो हवा में ही खेलते हैं ज़्यादातर। बॉटम हैंड का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
और इसे स्मैश किया, लाजवाब शॉट। और अंपायर का इशारा, ये 6 रन। साहबजादा फरहान की बैट स्पीड अनबिलीवेबल थी इस बार। ये खराब बॉलिंग है। हाफ लेंथ पे आप अगर बॉल करेंगे और साहिबजादा फरहान जैसे बैटर को बॉल करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। इतने शानदार प्लेयर हैं, बहुत जोरदार शॉट मारा। ये जो बैलेंस भी था वो फ्रंट फुट पे ही रहा। अच्छा बॉल को देख रहे हैं, बहुत ही कमाल का शॉट, प्लेसमेंट भी कमाल की रही। फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन उनसे परे बॉल जाता रहा। सोहेल खान जो हैं अपनी स्ट्रेंथ से हट गए थे और बहुत अच्छी आउट स्विंग बॉलिंग कर रहे थे, गेंद को आगे गिरा रहे थे। एक बार फिर ओवर की आखिरी गेंद पर रन साहबजादा ने हासिल किया। वही अगले ओवर में भी सामना करेंगे। 26 कुल स्कोर 4 ओवर्स के बाद। पानी पिलाना यार। कामरान गुलाम, आमिर अजमत, खालिद उस्मान, आदिल अमीन, काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है खैबर पख्तूनख्वा की। लेकिन अभी फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि दोनों ओपनर्स इंटैक्ट हैं। 18 रन पर मौजूद हैं साहबजादा फरहान। मोहम्मद हारिस ने बना रखे हैं 8 रन। 26 बगैर किसी नुकसान के 4 ओवर्स के बाद केपी। यह बहुत ही लंबी बैटिंग लाइनअप है खैबर पख्तूनख्वा की। ज्यादातर खिलाड़ी पुराने हैं। अबरार अहमद, अब फैसला किया गया पावर प्ले में इनको बॉलिंग करने का हुनर आता है। 11 मैचों में 10 विकेटें हैं। इकॉनमी रेट भी अच्छा है। अगर आपका 8 से कम इकॉनमी रेट है इस दौर में तो ये अच्छा तस्वुर किया जाता है। इनमें वो एक्स फैक्टर है जो टीम्स अपनी स्ट्रेंथ, बॉलिंग स्ट्रेंथ में ढूंढती हैं। एक बॉलर ऐसा होना चाहिए जो मिस्ट्री स्पिनर कहलवाए। ये भी कैरम बॉल करते हैं। यहाँ पे साउथ शकील चाहेंगे कि एक विकेट हासिल करके दें उनको। ये पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी है। देखना यह है कि क्या ये इनको रीड कर सकेंगे दोनों खिलाड़ी। अबरार अहमद पास खासी वेरिएशन है बॉलिंग करते हुए। कैरम बॉल और विकेटें लेना जानते हैं। गुगली कर सकते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं। ये इकलौते मिस्ट्री स्पिनर हैं इस टूर्नामेंट में। ये अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हारिस रुकने वाले हैं नहीं, अटैक करेंगे। डीप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर रखा है और लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर रखा है जो दायरे से बाहर है। क्या ये रोक पाएंगे हारिस को शॉट मारने से, बड़ी हिट मारने से? गेंद शॉट गिरा दी और तय कर दिया हारिस ने। उन्होंने ये किया है फैसला कि वो महाज गरमाएंगे। ये खराब बॉलिंग है, बहुत ही खराब बॉलिंग है। ऐसा बॉल तो आप कभी भी करेंगे तो उससे 4 रन मिलेंगे। देखिए क्या बोलेगा ये। शॉर्ट लेंथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ये आराम से 4 रन हासिल किया हारिस ने। क्या है ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। इस वक्त ऑफ साइड में 5 फील्डर मौजूद हैं और लेग साइड में खेल दिया। शानदार शॉट मिड विकेट से बाला शानदार छक्का लगाया इस बार हारिस ने, जो आड़े हाथों ले रहे हैं इस वक्त मिस्ट्री स्पिनर को। बहुत ही दिलेराना शॉट है ये हारिस की जानिब से। फील्डर मौजूद थे लेकिन 2 फील्डर्स के दरमियान में खेला, लेकिन अगर होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बॉल बाउंड्री से बाहर गया था। यहाँ पे अटैक करते हुए वो जानते हैं कि अबरार को अगर लाइन बनने दी गई तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अटैक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और रिक्वायर्ड रेट को नीचे ले आए हैं। 7.42 की हो गई अब। यहाँ पिछले ओवर में एक चौका और एक छक्का लगा था। एक चौका और छक्का इस ओवर में भी लग चुका है। ऑफ स्पिन करने की कोशिश की थी, अब तक बड़ा अच्छा फुटवर्क दिखाया है और
शुरू में ही इन्होंने हमला कर दिया है, इस वजह से परेशानी हुई है, खलबली मची है सिंध के खेमे में। लेकिन इनके पास विकेटें लेने के अलावा चारा नहीं है। जाहिद महमूद की ऑप्शन भी अवेलेबल है साउथ के पास इस पिच पे। वो अच्छे बॉल करेंगे क्योंकि बाउंस मिलेगा उनको थोड़ा सा। अच्छी फील्डिंग की दानिश अजीज ने अपने पहले ओवर में। अबरार अहमद ने 11 रन दिए, 37 के पी, किसी नुकसान के बगैर। Sunday afternoon turning into Sunday evening. Good atmosphere here at the Rawalpindi Cricket Stadium. In a good contest as well. AP hasn't got off to a flyer, but they haven't lost a wicket as well. That's called calculated chase. And he just said that afternoon going away, evening is setting. For some, sun is shining, and for others, it's going down. Shot off the back foot. Talk about placement. He's curved the face of the bat and beat that mid-on fielder. Had no opportunity whatsoever, and punched it hard enough this way. Ball is coming on so nicely. You don't have to bash the bowling. Just timing and placement, the roll of the wrist. Excellent stroke from Sahibzada Farhan. Used exactly the correct words. Calculated run chase, which we haven't seen so far. Lack of planning, lack of execution was discussed earlier whilst chasing totals. KB seems to have a method. Sahibzada Farhan is had a fairly good season last year in the List A cricket. 66 and he was unfit, but he's got a good 498 in T20s, 935 first class, total of 1,500 almost, 1,499 to be precise runs. Only played 3 games and got injured then, or unfit rather. He's shown some flexibility. We were discussing him in detail the other day. We know that his comfort zone is facing the new ball. He's done that time and again for KP. In franchise cricket, you look at PSL, different franchises have different lookouts. Islamabad United played him for the longest time as an opener whenever they did with Luke Ronchi. But when it came to Karachi, he was more of a finisher, played at number 5, 6. And he's had his fair share of various numbers. He looks the most in him within himself at this. Look at that. Look at that. I will not call that slog. That is a shot. Just cleared the front leg, held his shape, and picked up the slow delivery very, very nicely. Anwar Ali had been bowling hard lengths. This was right in the slot for Sahibzada Farhan. And bang, one bounce. In fact, it was a maximum. Look at those eyes. He liked that. Definitely he did. With that pace, it sits nice and pretty in front of your eye line. That length won't work, Anwar Ali. Now they're moving into top gear, using every ball left in the power play. Cracking pull shot. Anwar Ali's pace is not going to frighten you.
Although the line was good, but look at how early he's picked it, way in front of square. Rack of leather on willow, music to the ears. Really enjoyed by the crowd here. Sabzada Farhan putting the pressure right back on Anwar Ali. 16 of the over already. A huge over. That's the highest in power play for any team this season. 53 for no loss. Power play done and dusted. Second half of that power play well and truly belonged to Khyber Pakhtunkhwa. Started off in a sedate fashion. Haris at his very best when improvising. And with the bowlers pitching it up. Batters went for it. Haris once again, that sweep shot. Nice bit of timing. And a couple of magnificent blows to finish off the power play from Sabzada Farhan. 53, like Sikandar just said, is the best return for any team this season. (14 in the first 3 overs, 39 came in the second half of that power play. No! Fielder sitting back at the edge of the ring. Easy single there. That's what happens when you put bowling side under pressure. Oh yeah, yourself. Brar has got that mystery about him. Bowled quite a good over the first one. Went for 11. They shouldn't lose the start that they've got, KP. The initiative that they've had. It is a calculated chase. The first words that I said in this change is because they took their time. They were not really moving in the first 3 overs. I think the idea was not to lose quick wickets there. Then once they get their eye in, then they can afford. Plus also to see this new ball off. Now I think their focus would be to be a touch careful against Zahid Mahmood and Abrar. Front of the hand. Did too soon, Haris. Only one. Sade! Bowler! Ball is for 2, slight fumble. Haris is quick. Over at the wrong end as well. Saad Khan, Sarfraz not very happy. Only one. Yeah, he was screaming bowlers end. Aage raho. Going for 2 again. They'll complete it comfortably. Ball beat to hone de, phir le lunga main. Never a dull moment when Sarfraz is behind the stumps. 7 done, 59 for none. Four bowlers tried, and this is the first opportunity for Zahid Mahmood. Leg spin in operation now. In fact, Danish Aziz, so still no Zahid Mahmood. Plenty of options Sindh has in terms of bowling. Lots of people can try, part-timers, full-time spinners, quicks.
and with some experience. Mir Hamza, Suhail Khan. He's surprised Danish Aziz has been given the ball before Zahid. I think the only thing I can think of is that KP might attack him, and that might create an opportunity. And if they do, then bring in Zahid. Because runs are coming either way at the moment. No. The required is 7.6, whereas the current is 8. So no worries in that department for KP. It's just the wickets that they want to keep intact so that they don't have problems. But things can go down south very soon. You lose a couple of wickets and suddenly you see things getting messed up. Quick call from Sabzada Farhan on that occasion, making that run possible. Yeah, we've been discussing a lot about how the run chases haven't been very successful this season. And I don't want to say it too soon, but the method that I see from the KP batters, that's how run chases should be approached. They took their time in the power play, first 3 overs. They saw the new ball off, the threat of Hamza and Sohail. And then in the last 3 overs, they went 39 runs off the power play. And now they're well set with the field open. South. Yeah, you just saw the KP dugout. When you say more than one player not having shoes and socks on, that means the dressing room is relaxed. It's only a few padded up. He's playing at will. He's toying with him. The sweep shot is the shot where you just want to make sure you get those boundaries, because he's dragging it from outside the off stump. So behind the square on the onside is not guarded. There was a sweeper there, so he went behind square, met the ball way out in front. That allowed him to roll his wrist and play it behind square. And the sweeper was 10 or so yards away, couldn't make it. Clever cricket. Boundary to finish off over number 8. 66 for none. Zahid is finally at the bowling crease. That shot had so much in it, the last shot. Zahid Mahmood in action. That when Haris played that sweep shot from outside the off stump, he knows the offside field is packed. He knows there's a vacant zone, so he's playing that shot there. Eventually the captain might plug that gap and then you have more spaces on the offside. That's how batsmen think, they improvise. Also, the bowler is thinking, I'm going to bowl him outside the off stump. I have a packed offside field, even if there's a single, it's fine. But when you create spaces, then it becomes tough. Have a look. At the line, it was from way outside the off stump. Took the bowler by surprise and put him under extra pressure. Outside there's a different proposition altogether. He carries the threat of a wicket every time he bowls. That's why I was a bit surprised. That's sloppy. That is sloppy from Abrar. Will catch up, but not before Haris and Sabzada Farhan could complete 3 runs. Excellent piece of running there. You know the ball has a lot of spin on it when you're fielding in that zone. It's bound to just, you know, slip away. You've got to cover that. It's going to come spinning your way. Like in the language in cricket, they say, ghumega. Yourself. And also, whilst you're stopping the ball, if it's still spinning, you don't have to catch it. You can just knock it in front of you and prevent the ball from going through. KP's putting a lot of pressure. So not a bad over at all from Zahid. Still will cost him 5 runs. Thanks to that error from Abrar. 9 gone, 71 for 9.
Not a huge crowd, but a crowd of all ages. Small in numbers, but creating plenty of noise and good atmosphere inside the ground today. Nice weather to enjoy a game of cricket. Look at that. Good to see. Lots of cricket to be played still in the Kingdom Valley National T20. We move to Multan from here and then start playing the day-night games after the Asia Cup is done. Both these batsmen have had a good partnership against Northern. They had an 83-run partnership, opening partnership. They're getting close to that. Only one, only one. Sindh have used all their resources with the ball. It's what different they can do to break this partnership. They don't have a lot of runs. The required run rate is 7.5. Could they do anything different? Could bring a fielder in, an extra fielder inside the ring. Only one, only one. Just wait for the KP batters to make any mistakes. Very crucial stage in the game because the run rate required and current are the same. A wicket or two here can only swing the game to a certain level in Sindh's favour. Otherwise, KP's just rushing away. Oh, it's gone under. It's got that bottom edge. Things are not going for Sindh at the moment. Good stop, and it's gone for 4. So, yeah, good effort. Marks for effort. No luck for Danish Aziz. Look at Sarfraz. He was covering the line of the ball. That inside edge took the ball between his stumps. Abrar trying to redeem himself from the error for last over. Unlucky on that occasion. The ricochet went back into the skirtings. When things are going for you, they do go for you, and Haris will take. Abzada Farhan really punishing off the back foot. This time finding the sweeper. Closing in on a half century. Right now, everything is going against. And meanwhile, Mir Hamza, trying to dive and stop this, has rolled over the ball, so he's hurt himself a bit. So Mir Hamza is hurting, and so is Sindh, because they're leaking runs. This can be very painful. Look at that. When he stopped, I think, look here, his lower abdomen or his knee. Not clear from that picture. Just the abdomen, I think. Rolled over the ball. Once again, the effort was there, but it didn't produce the results that Sindh were looking for. In agony, Mir Hamza at the halfway stage. KP, 82 for none. मैदान पर फिजियो आए हैं इस वक्त मीर हमजा की मदद करने के लिए, जो कि अभी भी मैदान में गिरे हुए हैं। लेकिन ये दोनों बैट्समैन बहुत डट कर खेल रहे हैं, हारिस और साहबजादा फरहान, और इसे उठाकर खेल दिया। यहाँ पर कैच आउट होने का खतरा है और कोई गलती नहीं की। उमर बिन यूसुफ जो बड़े अच्छे आउटफील्डर समझे जाते हैं, उन्होंने सिंध को पहली कामयाबी दिला दी। अगेंस्ट द टर्न खेलने के लिए गए, गेंद बाउंस हुई फरहान की तवक्को से ज्यादा। जाहिद महमूद ने एक बार फिर अपने विकेट टेकर होने का सबूत दिया। ये इम्तिहान होना था केपी के बैटर्स का जाहिद महमूद के अगेंस्ट। इतना शॉर्ट बॉल था नहीं, तो लगा शायद लेंथ थोड़ा पीछे है, की वजह से बॉल लॉन्ग ऑन की जानिब गया, जो कि मिड विकेट की तरफ जाना चाहिए था।
उनको मालूम हो गया था जब उन्होंने हिट मारा था। पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की यहाँ पे। इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी था। 45 रन बना सके साहिबजादा फरहान। 82 पर 1 KP। कामरान गुलाम नए बल्लेबाज खेलने के लिए आए हैं। अच्छी डिलीवरी से रीड करने से कासिर रहे। जायद महमूद जो हैं एक आदत सी बना ली इन्होंने अपने पहले स्पेल में विकेट लेने की, और ये देखिए पुल करने के लिए गैर बुलंदी जरूर मिली लेकिन फासला बिल्कुल नहीं। जी हाँ, लेंथ सही नहीं था इस शॉट के लिए। थोड़ा करीब था बॉल उनके। ये जो स्पेल है जायद महमूद का, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस मैच में। सुन सकते हैं सरफराज अहमद कहने के रन आउट होना है तो एक्टिव रहे सारे दायरे के फील्डर, क्योंकि जानते हैं कि एक और विकेट यहाँ पे मैच में वापसी हो सकती है सिंध की। और रिवर्स शॉट खेला, सीधा गेंद गई दानिश अजीज के महफूज हाथों में और हारिस आउट हो गए। और डबल ब्रेक थ्रू जायद महमूद ने दिलाया और सिंध की टीम ने यहां फाइट बैक किया है इस ओवर के जरिए। दोनों ओपनर्स एक के बाद दीगरे गए। ये बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग है जाहिद महमूद की जानिब से। प्रेशर डाल के रखा बैटर्स पे, रन्स नहीं दे रहे थे। डॉट बॉल्स का प्रेशर हमेशा ही बहुत खतरनाक होता है, और ऐसे बैटर जो कि हारिस जिनको रन्स बनाना पसंद हो, 33 रन्स बना सके। 83 पर 2 KP। एक खलबली एक मची है नॉर्दर्न के कैंप में। पिछले मैच जैसी सूरत हाल है, जब 83 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, फिर 114 तक पहुंचकर इन्होंने 5 विकेटें गंवा दी। आज 82 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और 1 रन के इजाफे में दोनों सेट बैट्समैन वापस से हार गए। आदिल अमीन आए। जी हाँ, कमियां तो डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में है, लेकिन आदिल अमीन एक बहुत ही रेजिलिएंट प्लेयर है, रन्स करना जानते हैं। ये 2 बॉल है, देखो क्या हो रहा है। अच्छा कमबैक किया यहाँ पे सिंध ने। जाहिद महमूद एक डिफरेंट एनर्जी देखने को मिल रही है हमें सिंध की साइड में। ये विकेट्स ऐसा करती हैं, और ये जिस तरीके से आखिरी विकेट हासिल की उन्होंने, बाहर से फैच करने चले गए थे। बिल्कुल सही चॉइस नहीं थी शॉट की हारिस के लिए। अब एक ज्यादा पुरएतमाद बॉलर हैं जाहिद, वो गेंद को फ्लाइट भी दे रहे हैं और अपनी गूगलीज का और लेग स्पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रवानी से पहले इतने ज्यादा पुरएतमाद क्रिकेटर नहीं थे जाहिद महमूद। 85 पर 2। छह बॉलर्स का इस्तेमाल किया है सिंध ने। जाहिद महमूद 2 विकेट्स हासिल की 8 रन देकर।
जाहिद महमूद ने बड़ा उम्दा स्पेल किया है और उनने 2 विकेटें हासिल की एक ही ओवर में और सिंध की टीम को एक उम्मीद उनने दिला दी है। हालांकि इन दिनों इतना आसान नहीं है जाहिद महमूद के लिए। इनका जो घर है वो खतरे में, इनका शहर खतरे में इस वक्त सैलाब के, और उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन अपनी टीम के लिए लड़ाई कर रहे हैं रावलपिंडी आकर, प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह। बॉडी लैंग्वेज इनकी बदल गई है जब से ये बड़ी क्रिकेट खेले हैं। हाल ही में हॉलैंड में वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। प्रेशर केपी के बैटर्स पे है क्योंकि 2 विकेट्स बहुत जल्दी गंवा ली हैं और हम जानते हैं कि सिंध की बहुत क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। थोड़ी सी भी विंडो देंगे तो ये मुश्किल कर देंगे आपके लिए। अनवर अली को वापस लेके आए। यहाँ पे जाहिद महमूद का साथ देना होगा, एक पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी होगी, अच्छी बॉलिंग करनी होगी। किंगडम वैली नेशनल T20 कप, आप किंगडम वैली के ऑफिशियल पेज पर जाइए, इनामात पाने का मौका है और अगले विनर आप भी हो सकते हैं। यहाँ पर अनवर अली क्या अगले विनर हो सकते हैं विकेट के, और खासा मौका था। झिझक के साथ दौड़े थे दोनों बैट्समैन। दानिश अजीज पॉइंट पर ज्यादा दूर नहीं थे लेकिन गेंद उठा ही नहीं सके, इसलिए सरफराज अहमद रंजीदा है। या ये पहली बार नहीं है आज कि दानिश अजीज ने फंबल किया हो। जब इतना टाइट गेम हो, इतनी बेहतरीन टीमें खेल रही हो तो आपको एक एक रन बचाना होगा, रन आउट का चांस लेना होगा। डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली सरफराज के चेहरे पे, और क्यों ना हो कि आप इस वक्त एक मुश्किल मराहल से गुजर रही है टीम। कम बैक करने के लिए रन रोकने होंगे, विकेट्स हासिल करनी होगी। ये रन्स जो हैं ये सिंध की टीम को अब रोकना होंगी, इसलिए मिड विकेट पर सऊद शकील ने अबरार अहमद को आगे ला खड़ा किया है। ऑफ साइड में जो कवर के फील्डर हैं वो भी तकरीबन 20 गज के दायरे, तकरीबन 20 गज पर खड़े हैं ताकि एक रन ना बन सके। दानिश जो कि हॉट स्पॉट पर खड़े हुए हैं पॉइंट, बैकफुट पॉइंट पर, इनसे तो हमेशा तवक्को की जाती है कि ये रन ना बनने दें यहाँ से। क्या बाउंसर करेंगे अनवर अली, ये चाल चलते रहे यहाँ, वही करने की कोशिश की और अच्छा रास्ता रोका। सरफराज अहमद ने कलाबाजी ली और यकीनी रन्स उनने बचाए सिंध के लिए। यहाँ पे शानदार विकेट कीपिंग, यकीनी रन्स बचाए हैं अपनी टीम के लिए, और ऐसे ही एफर्ट की ज़रूरत है सिंध की फील्डिंग साइड को। काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी बाकी यंग फील्डर्स को सरफराज अहमद से। फिट नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन यंग फील्डर्स को सरफराज से। प्रेशर केपी के बैटर्स पे है। एक बार फिर बाउंसर हुक शॉट के जरिए एक रन मिल सकेगा और 49 गेंदों में 65 रन की जरूरत है। और हम देखते आए हैं यहाँ रावलपिंडी में कि ऐसी सूरत हाल में ये बॉलिंग टीमें हैं वो मजबूती से वापस आई खेल में और मैचेस वो जीतने में कामयाब हुई। लेकिन इसके लिए मुसलसल विकेटें लेते रहना होगा, हर 2-3 ओवर्स के बाद एक विकेट हासिल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि केपी पास ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर कोई भी इनमें से रहेगा आखिर तक तो वो ले जाएगा इनको लकीर के पार। यहाँ बहुत कमाल की टीम है केपी, ज़्यादा सुपरस्टार्स इस टीम में शामिल नहीं है लेकिन मैच विनर्स डेफिनेटली हैं। यहाँ पे 12 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 87 पर 2 केपी।
ये अंपायर आले हैदर, उनके साथ मैच रेफरी हैं मोहम्मद अनीस। अच्छे क्रिकेटर थे आले हैदर 90 की दहाई में। और एलबीडब्ल्यू की यहाँ पर जो मुतालबा किया था अंपायर ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि लेग ब्रेक होकर ये ऑफ स्टंप के बाहर निकल जाती। जहाँ शायद बल्ले का इशारा कर रहे थे कि बल्ले को बॉल लगते हुए गया है। एक बात तो है कि जाहिद महमूद के स्पेल ने सिंध की वापसी कराई है इस मैच में। सभी लेग स्पिनर्स महसूस हुए पिंडी के पिच पर बॉलिंग करके। उसामा मीर सेंट्रल पंजाब के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फैसल अकरम ने सदर्न पंजाब की टीम को कामयाबी दिलाई। तने तनहा डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। थोड़ा स्लो रिएक्शन दिया साउथ शकील ने, वरना मुश्किलात हो सकती थी बैटर के लिए। इतनी शानदार पिचेस हमें देखने को मिली है कि बाउंस और पेस के साथ, इसीलिए लेग स्पिनर्स एंजॉय कर रहे हैं। और ये वो मंजर, बहुत स्लो रिएक्शन दिया था साउथ शकील ने, लेट रिएक्ट किया, जिस वजह से आराम से पहुंच गए आदिल अमीन। जब पेस और बाउंस हो और लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो, कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहा हो, जैसे जाहिद महमूद कर रहे हैं, वनडे खेल के आए हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, अच्छी जगह पे बॉल गिर रहा है, दिल भी बड़े से बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बाउंस मिला है लेग स्पिनर को, वही उनकी कामयाबी का राज रहा है। हालांकि शुरू में पिंडी में जो स्पिनर्स आते थे तो वो इतने कारगर नहीं होते थे। शेन वॉन जब यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे तो सिर्फ एक ही विकेट हासिल कर सके थे। उनके सामने सलीम मलिक ने डबल सेंचुरी बना दी थी उस टेस्ट मैच में। यहाँ तक कि आमिर मलिक ने निस्फ सेंचुरी बनाई थी, यहाँ ये फिर मिस फील्डिंग हो गई। सिंध की टीम की गिरफ्त ढीली पड़ी है पिछले 2 ओवर्स में, फील्डिंग के जरिए ये रुकनी चाहिए थी। यहाँ बहुत ही लेजी एफर्ट है ये शाहिद महमूद की जानिब से, कंसंट्रेशन नहीं रखी। यासिर शाह और अली माजिद शाह 2 लेग स्पिनर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की है उन्होंने भी टूर्नामेंट में। स्पेशली अली माजिद शाह की अगर हम बात करें, पिचेस में नए बॉल से बॉल करते रहे, सर्कल में बॉल किए, रन्स भी नहीं दिए, विकेट्स भी हासिल किए। वो एक ऐसे लेग स्पिनर है जिन पे ज़रूर नज़र रखी जा सकती है। T20 की बॉलिंग, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे शेन वॉन का, टेस्ट मैच की क्रिकेट T20 की जो बॉलिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ पे तेज और बाउंस के साथ बॉल करते हैं अब लेग स्पिनर्स। ये अच्छा रन है, दानिश अजीज, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। यहाँ पे अगर डायरेक्ट थ्रो लग जाती तो मुश्किलात डेफिनेटली कामरान गुलाम के लिए हो जाती, लेकिन यहाँ पे 13 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 91 पर 2 KP। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये नेशनल T20 कप यंग क्रिकेटर्स के लिए इम्प्रेस करने के लिए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी ग्राउंड में मौजूद हैं, इंग्लैंड का टूर है, तो काफ़ी यहाँ पे अगर आप इम्प्रेस कर सकते हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस से। यहाँ अच्छा कम बैक किया सिंध ने, आखिरी 4 ओवर्स में कुल रन्स नहीं बनाने दिए हैं, टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, और ऐसा होता है जब आप विकेट्स हासिल करते हैं। यार जब ऐसा होता है तो फिर आपको जो रन बनाने की रफ्तार जो दरकार होती है वो बढ़ने लगती है। ये 60 T20 इंटरनेशनल मैचेस पहले खेले जाएंगे। 20 सितंबर से ये सीरीज़ शुरू होगी, 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। दोबारा इंग्लिश टीम आएगी दिसंबर में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए।
और यहाँ एक बार फिर एक रन कंसीड कर बैठे। दायरे के अंदर जो फील्डिंग है इस पर आज सवाल उठेगा, क्योंकि दबाव में रहे हैं दायरे के सभी फील्डर्स। बार बार रन आउट के मौके मिलते रहे। रन बनाना इतना आसान है नहीं इस वक्त पुरानी होती हुई गेंद पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। या हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कि ये जो पीरियड है 12 से लेके 16 ओवर्स का, ये मुश्किलात रही हैं बैटिंग साइड के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केपी भी मुश्किलात में है। सिर्फ 9 रन बने आखिरी 3 ओवर्स में, तो आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है जो एक टाइम पे 6 तक आ गई थी, अब बढ़ के 9.23 पे चली गई है। तो ये पीरियड बैटर्स के लिए मुश्किलात के लिए रहा है। ऑल्दो कामरान गुलाम, आदिल अमीन बहुत एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, लेकिन उतनी ही एक्सपीरियंस बॉलिंग का सामना है उनको। अब 60 रन दरकार हैं 39 बॉलों पे केपी को। जब तक कामरान गुलाम, आदिल अमीन हैं, के बाद खालिद उस्मान कप्तान को बैटिंग के लिए आना है। माज खान भी बैटिंग कर लेते हैं, आमिर अजमत हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। बॉटम एंड का ज्यादा इस्तेमाल कर बैठे थे, इसलिए गेंद हवा में गई। 39 गेंदों में 60 रन दरकार है, 38 गेंदों में 59 रन की जरूरत है। यहाँ दानिश अजीज से जो 2 ओवर कराए गए, गो के वो महंगे रहे, लेकिन काफी हद तक दर्द सर जो है वो कप्तान का खत्म हो गया है। अब अगर वो चाहें तो अबरार अहमद से मजीद बॉलिंग ना कराएं। अनवर अली को उस सूरत में 2 ओवर करना होंगे। अभी जाहिद महमूद का 1 ओवर बाकी है, इसके बाद सुहेल खान का 1 ओवर बाकी रह जाएगा। उम्मीद करेंगे कि मीर हमजा फिट होकर आएंगे बॉलिंग करने के लिए, उनके 2 बाकी हैं। और ये सॉफ्ट डिसमिसल, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी और सरफराज अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, कह के गूंज उठे हैं सिंध के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। विकेट मिल गई। आइडियल डिलीवरी तो नहीं थी विकेट हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसे मौके पे जैसे भी विकेट हासिल हों, अनलकी डिसमिसल इसे कहेंगे। गाइड करना चाहते थे फाइनल लेके जाने, और बल्ले का किनारा लिया और एक लकी विकेट हासिल किया। और ऐसी ही लक की जरूरत थी सिंध की साइड को, क्योंकि बहुत प्रेशर डाल के रखा हुआ था पिछले 3 ओवर्स में, और एक बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की। कामरान गुलाम 6 रन बना सके, केपी 93 पर 3। सरवर हफरीदी आ मिले हैं इस वक्त आदिल अमीन से पिच पर। क्रिकेट जो है ये अजीब इत्तेफाकात का खेल है। कई बार अच्छी गेंदों पर बैट्समैन चौका लगाता है और कई बार बुरी गेंद पर बॉलर को विकेट मिल जाती है। यही हुआ है। ये कामरान गुलाम के साथ सेट होकर खेल रहे थे। एक वाइड गेंद अगर वो छोड़ देते तो ये सुहेल खान को दोबारा करना पड़ती, लेकिन सरफराज अहमद ने बहुत उम्दा काविश की और उसी के नतीजे में विकेट हासिल हुई। अच्छा कैच था सरफराज का। यहाँ बहुत ही शानदार कैच, अपने करियर का 126वां कैच पकड़ा उन्होंने T20 में। डॉट बॉल्स ऐसा करवाती हैं आपसे कि आप जब प्रेशर में आते हैं तो आप शॉट मारने जाते हैं। ये भी है, जैसे आपने कहा कि आसानी से छोड़ सकते थे, लेकिन ये ऑटोमेटिक आपके बल्ले को लग जाता है यहाँ पे बॉल। एक बैटर की नेचर होती है कि उसने लेग साइड पे बॉल खेलना ही खेलना होता है। और बहुत ही शानदार कैच 14 ओवर्स के बाद 93 पर 3 केपी। ये बड़ा धचका लगा है खैबर पख्तूनख्वा को। पिछले 4 ओवर में सिर्फ 11 रन बने और 3 विकेटें गिर गई। 82 पर पहली विकेट गिरी थी और टॉप ऑर्डर जो है वो सिंध ने अब सर कर लिया है, हम कह सकते हैं। दोनों ओपनर्स और कामरान गुलाम जा चुके हैं वापस डग आउट में और ये ओवर बड़ी अहमियत रखता है। और इसे उठाकर खेले, यहाँ पर मौका हो सकता है, लेकिन आखिर में
ये गेंद दूर रह गई और अनवर अली ने इशारा दे दिया कि ये छक्का है। जी हाँ, यहाँ पे लकी रहे हैं आदिल अमीन, क्योंकि फील्डर मौजूद थे, ज्यादा दूर नहीं था बॉल, और जहां वो चाह रहे थे अगेंस्ट द विंड खेलें, इनफैक्ट विद द विंड गया है बॉल, दूसरे एंड पे खेले हैं, और ये बॉल अगर विद द विंड ना जाती तो मुश्किलात डेफिनेटली हो जाती। अच्छे शॉट का इंतखाब किया था, बड़ी उम्दा बॉलिंग। जाहिद अगर इस ओवर में विकेट हासिल करते हैं तो फिर यहाँ 100 रन मुकम्मल हुए केपी के, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि 9.18 रन हर ओवर में चाहिए मैच जीतने के लिए, और अगर दोनों एंड्स पर नए बैट्समैन आ जाते हैं तो वो एक ऐसी सूरत हाल होगी जो सिंध की टीम जिसकी कहाँ है, और यहाँ उठाकर खेले, और एक और ये छक्का जो तकरीबन बच चला था। लाजवाब कोशिश की साद खान ने, लेकिन गेंद उनके ऊपर